وہ دراز قامت آدمی اپنے نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا مسحری سے 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ ذریعہ پھٹی پھٹی سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک منہ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جو دیوار سے نکل کر اس کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دھاری دار بشرٹ اور سفید پجامہ، بڑا ہوا شیو، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں، پچکے ہوئے رخسار اور الجھے ہوئے بال۔ بالوں میں سیاہی کم اور سفیدی زیادہ تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پہلوؤں میں لٹکے ہوئے تھے۔ لیمپ کی زرد روشنی میں وہ بے حد پراسرار اور برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموش اور بے حس و حرکت کھڑا زریاب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ زریاب کے منہ سے خوفزدہ سی آواز نکلی۔ ڈرو نہیں، اس شخص کے منہ سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو تم زریاب ہو۔ ہاں میں زریاب ہوں، مگر تم کون ہو؟ زریاب بولی۔ اس کے لہجے میں خوف اب بھی نمایاں تھا۔ میں، یوں لگا جیسے اس شخص نے گہرا سانس لیا ہو، اس حویلی کا قیدی، جاگیردار نمران، جس نے تمہیں یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ زریاب کے ذہن کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا۔ وہ عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گوپانگ نے آرستہ کمرے میں آویزہ تصویر کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ نمران ہے، لیکن وہ تصویر ایک خوبرو شخص کی تھی، اور یہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا کسی طرح بھی اس تصویر سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ انسان نہیں، کوئی بدرو لگ رہا تھا۔ اس حویلی میں اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب اور ناقابل فہم واقعات پیش آ رہے تھے۔ گزشتہ 2 دنوں میں 3 آدمی قتل ہو چکے تھے۔ وہ تینوں ریلوے کے ملازم تھے۔ انہیں محض اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ اس کی یہاں آمد کے بارے میں گواہی نہ دے سکیں، لیکن ان تینوں میں کم از کم ایک شخص ایسا تھا جو اس حویلی کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ اسے شاید اس لیے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا کہ وہ زریاب کے سامنے حویلی کے راز نہ اگلے، اور پھر وہ کندن، اس کی شخصیت بھی اس کے لیے بڑی پراسرار ثابت ہوئی تھی۔ وہ حویلی کے بہت سے راز جانتی تھی، خفیہ راستوں سے واقف تھی۔ وہ اپنے آپ کو زندہ کہتی تھی، مگر لیفٹ ونگ کی راہداری سے اچانک ہی غائب ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کی گمشدہ ڈائری والا واقعہ۔ ڈائری کی تلاش میں اس نے کمرے کا کونا کونا چھان مارا تھا، بستر کی چادر تک اٹھا کر جھاڑ ڈالی تھی، مگر کمرے میں ڈائری کا سراغ نہیں ملا تھا۔ اور دوسرے دن ڈائری اس کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی ملی تھی۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک رات پہلے اس نے ڈائری کے 3-4 صفحات پر جو تحریر لکھی تھی وہ غائب تھی۔ تحریر پین سے لکھی گئی تھی، جس کا مٹایا جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ اگر کسی طرح مٹایا بھی کیا ہو تو کوئی نہ کوئی نشان ضرور رہ جاتا، مگر صفحات بالکل صاف تھے، بالکل کورے۔ ڈائری کے ہر صفحے پر دن، تاریخ اور مہینہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک ایک صفحہ چیک کیا تھا، کوئی صفحہ بھی غائب نہیں تھا۔ یہ اسرار ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ ڈائری کے صفحات سے اس کی تحریر کیسے غائب ہو گئی تھی۔ گوپانگ اور خامس کو زریاب پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے اسے پہلے کمرے سے نکال کر اس کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا جس کے روشن دان اور کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ زریاب نے اگرچہ چیک نہیں کیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ کمرے کے دروازے کو باہر سے بھی کنڈا یا تالا لگا دیا گیا ہوگا، اور یہ پراسرار شخص دیوار سے برآمد ہوا تھا اور اپنے آپ کو جاگیردار نمران کہہ رہا تھا۔ زریاب بڑی گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ نمران نے اسے خط میں لکھا تھا کہ وہ بوڑھا اور بیمار ہے، اس لیے خود نہیں آ سکتا۔ گوپانگ نے بھی یہی بتایا تھا کہ جاگیردار بیمار ہے اور ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا یہ شخص بھی بوڑھا تھا اور بیمار نظر آ رہا تھا، لیکن دوسرے کمرے میں آویزہ تصویر سے مشابہت نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی یہ خیال ابھرا کہ وہ تصویر جوانی کی تھی اور یہ شخص بوڑھا تھا۔ اس نے کئی روز سے شیو بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ بیماری اور اس بدلی ہوئی حیت نے تصویر سے اس کی مشابہت ختم کر دی تھی۔ آپ نمران ہیں؟ زریاب کی نظریں بدستور اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ہاں، اور میں نے ہی تمہیں یہاں آنے کے لیے خط لکھا تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ نمران نے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، پھر کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اگر تم کہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں، تھک گیا ہوں کھڑے کھڑے۔ جی ضرور ضرور، آپ تشریف رکھیے۔
ज़रियाब ने कहा और खुद भी मसहरी से उतरकर खड़ी हो गई और कुर्सी उठाकर उसके करीब रख दी। शुक्रिया। नमरान कुर्सी पर बैठ गया और दोनों हाथ हथियों पर रख दिए। बैठो तुम भी। ज़रियाब पैर लटकाकर मसहरी पर बैठ गई। मुझे उसी रोज पता चल गया था जब तुम यहां आई थी, नमरान ने कहा, लेकिन इन लोगों ने मुझे अपना कैदी बना रखा है, किसी से मिलने नहीं देते। नमरान ने कमजोर सी आवाज में कहा। आपने मुझे वो खत कैसे लिखा था? ज़रियाब ने पूछा। अब उसके जहन पर तारी खौफ जायल हो चुका था। डॉक्टर, नमरान ने जवाब दिया, डॉक्टर शमीर महीने में 2 मरतबा मुझे देखने के लिए यहां आता है। वो हमेशा अपने साथ कुछ अखबारात भी ले आता है जो मैं महज वक्त गुजारी के लिए पढ़ता हूं। कई रोज पहले जब वो मुझे चेक करने के बाद चला गया तो मैं अखबारात देखने लगा। उनमें कम से कम 3 अखबारात ऐसे थे जिनमें तुम्हारी तरफ से इश्तहार छपा था। इश्तहार पढ़कर मुझे हैरत भी हुई थी और खुशी भी कि कोई तो ऐसा है जो इस कदीम तरीन खानदान की बिखरी हुई तारीख को समेट कर उसे महफूज करना चाहता है। मैंने तुमसे राब्ता करने का फैसला कर लिया और खत लिख कर रख लिया। अगली मर्तबा जब डॉक्टर शमीर मुझे चेक करने के लिए आया तो उसे एक बड़ी रकम का लालच देकर वो खत उसके हवाले कर दिया कि तुम्हारे नाम पोस्ट कर दे। नमरान रुक कर गहरे गहरे सांस लेने लगा, जैसे वो बोलते बोलते थक गया हो। ज़रियाब गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। चंद दमों की खामोशी के बाद नमरान फिर बोलने लगा। डॉक्टर शमीर ने वो खत पोस्ट कर दिया, लेकिन जो अंदाजे कायम थे वो गलत निकले। पहले हवेली की डाक यहीं आया करती थी। मेरा ख्याल था कि अगर तुम्हारा खत आया तो गोपांग उसे मुझ तक पहुंचा देगा, लेकिन तुम्हारा खत दरवेशपुर में गोपांग के दफ्तर पहुंच गया। पोस्ट ऑफिस वाले सभी जानते थे कि मेरे मैनेजर का दफ्तर दरवेशपुर में है। यह मुमकिन है गोपांग को डॉक्टर शमीर ने इस खत के बारे में बता दिया हो और पोस्ट ऑफिस को हिदायत कर दी गई हो कि हवेली के पते पर आने वाली डाक उनके दफ्तर पहुंचा दी जाए। वैसे भी मुझे यकीन है कि अगर वो खत हवेली तक आ भी जाता तो मुझ तक ना पहुंचता। वो एक बार फिर खामोश हो गया। उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। आपको कैसे पता चला कि मैं यहां आ गई हूं? ज़रियाब ने पूछा। जिस रात तुम यहां पहुंची थी उससे अगली सुबह गोपांग ने मुझे बताया था। वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम कौन हो और मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। नमरान ने जवाब दिया। मैंने उन्हें पुराने अखबारात में तुम्हारे इश्तहार दिखाए थे, मगर उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया। वो समझ रहे हैं कि मामला कुछ और है। और क्या मामला हो सकता है? ज़रियाब ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। जागीर का मामला है, नमरान ने जवाब दिया। लंबा किस्सा है, फिर बताऊंगा। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। कौन हो, किसकी औलाद हो और इस खानदान की तारीख लिखने का ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आया? मेरा बाप एक नामवर ताजिर था। एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया, ज़रियाब ने बताया। उसका नाम? वो कहां से आया था? नमरान ने पूछा। मेरे वालिद का नाम शुजरा सुंदस था। मैं इसी शहर में पैदा हुई थी, लेकिन सुना है कि मेरे दादा पड़ंगाबाद से आकर इस शहर में आबाद हुए थे। उस वक्त मेरे वालिद बहुत कम उम्र थे। वो इसी शहर में पले बढ़े और आला तालीम हासिल की। अपने वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने कारोबार संभाल लिया। दयानतदार और मेहनती आदमी थे। कारोबार तरक्की करता चला गया। एक रोज घर पर हमें इत्तला मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। जब हम अस्पताल पहुंचे तो वो जाँ बहक हो चुके थे। पड़ंगाबाद, नमरान बुड़बुड़ाया। तुम्हारे दादा का नाम क्या था? रोशन ज़मीर, ज़रियाब ने जवाब दिया। सुना है कि वो किसी बात पर अपने वालिद से नाराज होकर वहां से निकले थे और फिर वापस नहीं गए। तुमने कभी जीदार बख्त का नाम सुना है? नमरान ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। नहीं तो। ये कौन है? ज़रियाब ने पूछा। मेरे दादा का नाम था। पड़ंगाबाद से उनका भी कुछ ताल्लुक रहा है, नमरान ने जवाब दिया। फिर बोला, तुम्हारे वालिद शुजरा ने तुम्हें अपने बुजुर्गों के बारे में कुछ नहीं बताया था? इत्तफाक से कभी जिक्र होता तो किसी के बारे में कुछ बता देते, लेकिन उनकी बातों से मैंने अक्सर यही अंदाजा लगाया था कि वो अपने बुजुर्गों से कुछ नाराज हैं शायद, इसलिए बहुत कम जिक्र किया करते थे।
ذریعہ نے جواب دیا۔ تمہارا کوئی بہن یا بھائی؟ نمران نے پوچھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والد بھی اپنے ماں باپ کے اکلوتے ہی تھے، اس لیے کوئی کزن وغیرہ بھی نہیں ہے، ذریعہ نے کہا۔ اس خاندان کی تاریخ لکھنے کا خیال تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ نمران نے پوچھا۔ تاریخ کا مطالعہ میری ہابی ہے، ذریعہ نے کہا۔ ایک مرتبہ ایک کتاب پڑھی تھی جس کی مصنف نے سندس خاندان کی تاریخ کو مختلف حوالوں سے کچھ گٹ مٹ کر دیا تھا۔ اسی وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اس خاندان کے بارے میں حقائق جمع کر کے انہیں کتابی صورت میں مرتب کروں۔ اخباروں میں اشتہارات کے جواب میں بہت سے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے تھے۔ میرے لیے سب سے اہم خط آپ کا تھا، جس میں آپ نے کچھ دستاویزات کا حوالہ دیا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے آپ سے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہاں آتے ہی عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گئی۔ اس حویلی کے اسرار میری سمجھ میں نہیں آ سکے۔ جس رات میں یہاں آئی تھی اسی رات 3 آدمی قتل ہو گئے۔ ان تینوں کا تعلق ریلوے اسٹیشن سے تھا۔ ان میں سے شگن نام کے ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ اس کا باپ اس حویلی کا خدمتگار تھا۔ شگن؟ نمران کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ عجیب و غریب حیت والا وہ لڑکا، کیا وہ زندہ ہے؟ اسے حویلی میں قتل کیا گیا ہے اور اس کی لاش اب بھی کسی کمرے میں پڑی سڑ رہی ہے، ذریعہ نے کہا۔ مجھے اس کی موت کا بے حد افسوس ہے، نمران نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے باپ اور دادا نے اس حویلی کی بڑی خدمت کی ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ کسی نہ کسی طرح پتہ چل گئیں، ذریعہ نے جواب دیا۔ میرے ساتھ اس حویلی میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ جب میں یہاں آئی تو اپنے والد کے کاغذات میں سے کچھ تصویریں بھی لے کر آئی تھی۔ وہ سندس خاندان کے بعض بزرگوں کی تصویریں تھیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ تصویریں دکھا کر آپ سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن تصویروں والا وہ لفافہ پہلی رات میرے سوٹ کیس میں سے چوری ہو گیا۔ چوری ہو گیا؟ نمران نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، ذریعہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے خامد سے اس سلسلے میں باس پرس کی تھی، لیکن اس نے الزام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ تصویریں کیسی تھیں؟ نمران نے پوچھا۔ ان میں کم از کم ایک تصویر ایسی تھی جس کی ایک نقل بڑے سائز میں اس حویلی کے ایک کمرے میں آویزاں ہے، ذریعہ نے بتایا۔ کیا؟ نمران چونک گیا۔ وہ تصویر کہاں دیکھی ہے تم نے؟ لیفٹ ونگ کے سامنے والے بلاک کے ایک کمرے میں، ذریعہ نے بتایا۔ اوہ، نمران گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ وہ میرے دادا جیدار بخت کی تصویر ہے، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے پاس اسی کے ساتھ کی تصویر تھی؟ 100%، ذریعہ نے کہا۔ لیکن کیا میرے والد کا اس حویلی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، نمران نے اسے کوڑا۔ اس تصویر میں میرے والد کی مشابہت ہے، ذریعہ نے جواب دیا۔ وہ آنکھیں، تھوڑی پر ایک چھوٹا سا تل۔ یہ تل میں نے اس حویلی میں آویزہ ایک اور تصویر کی تھوڑی پر بھی دیکھا ہے۔ میرے والد نے کبھی اس جاگیر یا حویلی کا ذکر نہیں کیا۔ جیدار بخت کا نام بھی پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے سنا ہے، لیکن اپنے والد سے اس کی مشابہت میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ شاید اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، نمران نے کہا۔ کوئی تعلق نہ ہوتے ہوئے بھی بعض چہروں پر مشابہت آ جاتی ہے۔ ان لوگوں نے آپ کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ ذریعہ نے پوچھا۔ دنیا میں 3 چیزیں فساد کا باعث بنتی ہیں، نمران نے جواب دیا۔ دنیا کا پہلا قتل ایک عورت کے لیے ہوا تھا، پھر جب دنیا کی آبادی بڑھ گئی تو انسان کے دل میں زر اور زمین کی ہوس بھی پڑنے لگی۔ آج یہی تینوں چیزیں قتل و غارت اور فساد کا باعث ہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اس جاگیر کا میں واحد مالک ہوں۔ ایک بیٹی تھی جو مر چکی ہے۔ اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں۔ جاگیر کا مینیجر رکھیل شاہ بدنیت آدمی ثابت ہوا۔ وہ میری جاگیر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پہلے اس نے میری بیٹی سے شادی کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے جان دے دی۔ پھر اس نے مجھے اس حویلی میں قید کر دیا۔ 2 سال سے میں اس حویلی سے باہر نہیں نکلا۔ گوپانگ اور خامس اس کے گرکے ہیں۔ یہ دونوں بہت شفاق انسان ہیں۔ پہلے میں حویلی میں گھوم پھر لیا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے چوری چھپے حویلی سے نکلنے کی کوشش کی تو مجھے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔
कभी कभार ताज़ा हवा के लिए मुझे बाहर निकाला जाता है। मैं तवील अरसे से बीमार हूँ। एक नर्स उन्होंने मेरी देखभाल के लिए रखी हुई है। महीने में 2 मरतबा डॉक्टर भी आता है, वो भी उन्हीं का वफादार है। उस रोज़ डॉक्टर ने न जाने क्या सोचकर तुम्हारे नाम मेरा वो खत पोस्ट कर दिया था। क्या ये लोग आपको कत्ल करना चाहते हैं? ज़रिया ने पूछा। हाँ, लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक रखेल शाह मुझसे कागजात पर दस्तखत नहीं करवा लेता, नमरान ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद फिर बोला। रखेल शाह इस जागीर को दोबारा आबाद करने के लिए हुकूमत से कर्जा हासिल करना चाहता है ताकि जंगलात साफ करके मीलों तक फैली हुई ज़मीन को दोबारा काश्त के काबिल बनाया जा सके। आजकल जदीद तरीन मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन मीलों दूर तक फैले हुए जंगलात को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए दरकार हैं, और जो रखेल शाह हुकूमत से कर्जे के तौर पर हासिल करना चाहता है, इसके लिए कागजात पर मेरे दस्तखत जरूरी हैं। कर्जा भी मेरे ही नाम से जारी होगा। रखेल शाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रखेगा जब तक तमाम मराहिल तय नहीं हो जाते। उसके बाद वो मुझे जिंदगी की एक सांस लेने की मोहलत भी नहीं देगा। मैंने इसलिए तुमसे राब्ता करना चाहा कि शायद तुम्हारे तवस्सुस से उनकी साजिश को नाकाम बना सकूं, लेकिन तुम खुद यहां कैद होकर रह गई हो। मुझे डर है कि ये लोग तुम्हें भी खत्म ना कर दें। और वो दस्तावेजात? ज़रिया अपने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरे पास महफूज हैं, नमरान ने जवाब दिया। वो दस्तावेजात मेरे लिए और रखेल शाह के लिए भी बड़ी अहम हैं। मेरे लिए इस तरह कि मैं तुम्हारी रिसर्च से अपने किसी वारिस का सुराग लगा सकता हूँ, और वो दस्तावेजात रखेल शाह के लिए इस तरह अहमियत रखते हैं कि वो उन्हें ज़ाया करके सब कुछ ख़त्म कर देगा। मैंने सुना है कि इस किस्म की कदीम हवेलियों में ऐसे खुफिया रास्ते भी होते हैं जिनके ज़रिए बाहर निकला जा सके। इस हवेली के नीचे कुछ सुरंगें मैंने भी देखी हैं, लेकिन वो भूल भुलैयों की तरह अंदर ही अंदर घूमती हैं, ज़रिया ने कहा। मुझे एक बार फिर हैरत हो रही है, नमरान ने कहा। तुम्हें हवेली में आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, और पाबंदियों के बावजूद तुमने इतनी सारी बातें कैसे मालूम कर लीं? इस हवेली के अंदर एक ऐसी हस्ती भी है जो मेरी मदद कर रही है, ज़रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि उसे जिंदा इंसानों में शुमार करूं या कोई रूह समझूं, जबकि वो खुद अपने आप को जिंदा बावर कराने पर मुसिर है। कौन है वो? नमरान ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पहली रात मैंने उस कमरे में एक पेंटिंग देखी थी। दूर दूर तक फैली हुई फसलें, पस मंजर में हवेली और खेतियों की पगडंडी पर बैठी हुई एक खूबसूरत औरत। फिर एक ज़ेरे ज़मीन कमरे में उसी हसीन औरत का पोर्ट्रेट देखा, और मैं उसके बारे में सोच ही रही थी कि वो सफ़ेद लिबास पहने मुजस्सिम सूरत में मेरे सामने आ गई। ज़रिया एक लम्हे को खामोश हुई। उसने नमरान की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि वो नमरान की तरफ देखती तो उसके चेहरे के तगय्युरात देखकर परेशान हो जाती। वो बात जारी रखते हुए कह रही थी, वो अपने आप को जिंदा कहलाने पर मुसिर है, लेकिन मैं उसे कोई नेक दिल रूह समझती हूँ। उसने मुझे हवेली के नीचे बिछे हुए खुफिया रास्तों की सैर कराई थी। वो बेचारी भी आपकी तलाश में हवेली में भटक रही है। कुंदन नाम है उसका। कुंदन? नमरान के मुंह से गहरा सांस निकला। उसके चेहरे की रंगत एक बार फिर मुतगय्यर सी हो गई। आंखों की वीरानी कुछ और बढ़ गई थी। आप कुछ परेशान हो रहे हैं? ज़रिया उसकी हालत देखकर चौंक गई। कुंदन जिंदा नहीं हो सकती। नमरान के मुंह से मुर्दा सी आवाज निकली। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, ज़रिया बोली। कुंदन मेरी बेटी थी, नमरान ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया। 10 साल पहले उसका इंतकाल हो गया था। 20-21 साल उम्र थी उसकी। बहुत हसीन थी। मेरा मैनेजर रखेल शाह उससे शादी करना चाहता था, मगर कुंदन ने साफ इनकार कर दिया। वो उस बदमाश की साजिशों से वाकिफ हो चुकी थी और जानती थी कि रखेल शाह ये शादी महज जागीर पर कब्जा करने के लिए करना चाहता है। एक रात, वो कहते कहते रुक गया। पुरानी बातें याद करके उसके चेहरे पर मुर्तनी सी छा गई थी। वो कह रहा था, एक रात उस बदमाश ने कुंदन के साथ दस्तराजी की कोशिश की। कुंदन कमरे से निकलकर बदहवासी में दौड़ती हुई सीढ़ी पर चढ़ गई, जो रास्ता हवेली की फसील तक चला गया था। रखेल शाह भी उसके पीछे फसील पर पहुंच गया। कुंदन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए फसील के बाहर जंगल की तरफ छलांग लगाकर
اپنی جان دیتی۔ صبح اس کی لاش تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک جگہ خون کے دھبے تو ملے، لیکن اس کی لاش نہیں ملی۔ شاید بھیڑیے وغیرہ گھسیٹ کر کسی بھٹ میں لے گئے ہوں گے۔ اوہ، مجھے افسوس ہے، میں نے آپ کے زخموں کو چھیڑ دیا، زریاب نے کہا۔ وہ یقیناً کندن کی روح ہے، نمران نے کہا۔ مجھ سے بڑی محبت تھی اسے، بیچاری اب بھی میری تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ زریاب اندر ہی اندر کانپ کر رہ گئی۔ کندن کو مرے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے اور وہ اس کی روح کے ساتھ حویلی کی زیر زمین سرنگوں میں گھومتی رہی تھی۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ وہ فصیل سے چھلانگ لگانے کے بعد زندہ بچ گئی ہو اور رکھیل شاہ سے بچنے کے لیے کہیں روپوش ہو گئی ہو؟ بالآخر زریاب نے پوچھا۔ ناممکن، نمران نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جس فصیل سے اس نے چھلانگ لگائی تھی اس کے پچھلی طرف 50-60 فٹ کی گہرائی ہے اور اونچے درخت ہیں۔ اتنی بلندی سے گر کر کسی کا زندہ بچنا ممکن نہیں۔ اگر اتنی بلندی سے گرنے کے بعد کوئی مرنے سے بچ بھی جائے تو اس کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہ سکتی۔ یہ باور کر لیا گیا تھا کہ فصیل کے باہر گرنے سے وہ ختم ہو گئی تھی اور اس کی لاش خونخوار بھیڑیے یا کوئی اور جنگلی جانور گھسیٹ کر کہیں لے گئے تھے۔ رکھیل شاہ اور اس کے آدمیوں کو بھی اس وقت یہ شبہ ہوا تھا اور جنگل میں دور دور تک تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اور وہ خفیہ راستے؟ زریاب نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس حویلی سے نکلنے کے 3 خفیہ راستے ہیں، نمران نے کہا۔ ایک کچن کی پچھلی طرف واقع کمرے میں، دوسرے راستے کی سرنگ اندر سے مسمار ہو چکی ہے، اس طرح وہ راستہ بند ہو چکا ہے، اور تیسرا راستہ رکھیل شاہ نے بند کر دیا ہے۔ دراصل اسے اسی ایک راستے کا علم تھا جسے اس نے اس خوف سے بند کروا دیا کہ میں فرار نہ ہو سکوں۔ کچن والے راستے اور مسمار شدہ سرنگ والے راستے کا اسے علم ہی نہیں ہے۔ کچن سے ملاق کمرے میں اس شخص کا بسیرا ہے جسے تم اس حویلی کا آصف کہہ سکتی ہو۔ اس کا نام خامس ہے۔ وہ بہت ہی پراسرار قسم کا شخص ہے۔ شاید اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے، کوئی بہت ہی خاص حس کہہ لو جو اسے ہر بات سے خبردار رکھتی ہے۔ اسے فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں ہے۔ ہاں، یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی ہے، زریاب نے کہا۔ گوپانگ نے مجھے حویلی کے لیفٹ ونگ کی طرف جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے جب بھی چوری چھپے اس طرف جانے کی کوشش کی، خامس نے میرا راستہ روک لیا۔ لیفٹ ونگ میں کیا ہے؟ حویلی سے نکلنے کا وہی خفیہ راستہ جسے رکھیل شاہ نے بند کرا رکھا ہے، نمران نے جواب دیا۔ تمہیں اس طرف جانے سے اس لیے منع کر دیا گیا ہوگا کہ کہیں تم وہ راستہ تلاش نہ کر لو۔ اوہ، زریاب نے گردن ہلا دی۔ ان 3 راستوں کے علاوہ کوئی چوتھا راستہ جو آپ کے علم میں نہ ہو سکتا ہے ایسا کوئی اور راستہ بھی ہو، نمران نے جواب دیا۔ جاگیرداری، ریاستی اور حکمرانی کا نظام دراصل بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ تم تاریخ کی طالب علم ہو، تم نے ضرور پڑھا ہوگا کہ جاگیر یا ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، چچا نے سگے بھتیجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاریخ اس قسم کے خونی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جاگیردار، راجے، مہاراجے اور ریاستوں کے حکمران جب بھی اپنی رہائش کے لیے کوئی عمارت بنواتے تھے، وہ ایسے خفیہ راستے بھی ضرور بنواتے تھے جو کسی خطرے کے وقت ان کی جان بچا سکیں۔ ان خفیہ راستوں کو وہ ہمیشہ راز میں رکھا کرتے تھے اور غالباً مرتے وقت ہی اپنی اولاد کو اس راز سے آگاہ کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی حویلی ہے، اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں خفیہ آمد و رفت کے بہت سے راستے ہوں گے۔ مجھے بہرحال ان 3 راستوں کا علم ہے جن کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ممکن ہے کوئی ایسا راستہ بھی ہو جس کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ کے خیال میں یہ لوگ مجھے واپس جانے دیں گے؟ زریاب نے پوچھا۔ نہیں، نمران نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بقول تمہاری آمد کو راز میں رکھنے کے لیے یہ لوگ 3 آدمیوں کو قتل کر چکے ہیں۔ کسی چوتھے آدمی کا وجود نہیں جس نے تمہیں یہاں آتے دیکھا ہو،
ہو سکتا ہے یہ لوگ تمہیں قتل نہ کریں اور تم زندگی بھر کے لیے اس حویلی کی قیدی بن کر رہ جاؤ۔ میری طرح باہر کی دنیا کو تمہارے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنی والدہ کو بتا دیا تھا، وہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں گی، زریاب نے کہا۔ وہ اگر پوری فوج بھی یہاں لے آئیں تو اس حویلی میں تمہیں تلاش نہیں کیا جا سکتا، نمران نے جواب دیا۔ لیکن زریاب کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ نمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ باہر راداری میں دبے دبے قدموں کی آواز زریاب نے بھی سن لی تھی۔ میں پھر تم سے ملوں گا، نمران کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ گیا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا اسی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے پیر سے دیوار کے سب سے نیچے کسی اینٹ کو دبایا، دیوار شق ہو گئی۔ نمران اسی خلا میں داخل ہو گیا۔ اس نے زریاب کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا، دیوار کے دونوں حصے آہستہ آہستہ ملنے لگے۔ ٹھیک اسی لمحہ ایک ایسی آواز آئی جیسے تالے میں چابی گھمائی جا رہی ہو۔ زریاب بستر پر لیٹ گئی۔ ادھر دیوار کی خلا بند ہوئی، ادھر دروازہ کھل گیا۔ زریاب نے آنکھیں بند کر لیں اور یوں بے حس و حرکت ہو گئی جیسے گہری نیند سو رہی ہو۔ قدموں کی آواز سن کر زریاب نے ایک آنکھ میں ذرا سی جھرری پیدا کر کے دیکھا۔ گوپانگ اور خامس کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ زریاب نے جلدی سے آنکھ بند کر لی۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہ گوپانگ کی آواز تھی۔ میں نے خود یہاں باتوں کی آواز سنی تھی، میرے پاس چابی ہوتی تو میں اسی وقت دروازہ کھول کر دیکھ لیتا، خامس نے جواب دیا۔ اگر کمرے میں کوئی اور تھا تو کہاں چلا گیا؟ گوپانگ نے کہا۔ جگاؤ اسے۔ زریاب آنکھیں بند کیے خاموش پڑی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ خامس اسے آواز دے کر جگانے کی کوشش کرے گا، لیکن خامس نے آواز دینے کے بجائے اسے کندھوں کے قریب پاؤں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا دیا۔ زریاب بدحواس ہو گئی۔ یہاں کون تھا؟ کس سے باتیں کر رہی تھی تم؟ اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی جیسے 11-12 سال کا کوئی لڑکا غصے میں خرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہاں کون آ سکتا ہے؟ زریاب نے کہا۔ روشن دان اور کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی ہیں، دروازے کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا، بلی کا بچہ بھی اندر نہیں آ سکتا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے خود باتوں کی آواز سنی تھی، خامس نے کہا۔ تو پھر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، زریاب نے کہا۔ کمرے میں اگر کوئی ہو تو اسے تلاش کر لو۔ کمرے میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں کسی کو چھپایا جا سکتا۔ خامس نے جھک کر مسیری کے نیچے جھانکا، پھر سیدھا ہو کر کمرے کی سپاٹ دیواروں کو گھورنے لگا۔ وہ دونوں باہر جانے لگے تو زریاب گوپانگ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، مجھے قیدی بنا کر کیوں رکھا گیا ہے؟ تم بالکل آزاد ہو، گوپانگ نے کہا۔ تم نے اپنے آپ کو قیدی کیسے سمجھ لیا؟ کمرے کے روشن دان اور کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں اور دروازے کو باہر سے تالا، کیا تم اسے آزادی سمجھتے ہو؟ زریاب نے اسے گھورا۔ روشن دان اور کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں احتیاطاً لگائی گئی ہیں۔ حویلی کے اس حصے میں خونخوار کتے بھی رہتے ہیں جو رات کو کھلے رہتے ہیں۔ یہ کتے بہت خاموش طبع لیکن بد دماغ ہیں۔ اگر کوئی کتا کھڑکی کے راستے اندر آ گیا تو تمہیں چیر پھاڑ ڈالے گا، اور دروازے پر تالا شاید غلطی سے لگ گیا تھا۔ بہرحال تم اب دروازے کو اندر سے بند کر سکتی ہو، گوپانگ نے کہا۔ پھر وہ باہر نکل گئے۔ وہ مسیری پر لیٹی اس تازہ ترین صورتحال کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ جس سے ملنے کے لیے اتنا طویل سفر کر کے یہاں آئی تھی، بالآخر اس سے ملاقات ہو گئی تھی، لیکن یہ ملاقات بھی عجیب پراسرار حالات میں ہوئی تھی۔ جاگیردار نمران جس طرح دیوار سے برہمت ہوا تھا، اس سے زریاب سمجھ گئی تھی کہ جس تہخانے میں وہ قید تھا وہاں سے کوئی خفیہ راستہ اس کمرے تک آتا تھا، لیکن زریاب کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ نمران کو کیسے پتا چلا کہ وہ اسی کمرے میں موجود ہے، اور پھر یہ کہ تہخانے میں اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس بھی موجود تھی۔ وہ نرس یقیناً اس کی نگرانی کے فرائض بھی انجام دیتی ہوگی۔ ایسی صورت میں وہ اسے دھوکہ دے کر کیسے نکل آیا تھا؟ اس سوال کا جواب زریاب نے خود ہی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ممکن ہے نرس کی گہری نیند سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے قید خانے سے نکل آیا ہو۔ خامس واقعی کسی آسیب سے کم نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر بھی وہ کسی بدرو کی طرح حویلی میں بھٹک رہا تھا۔ وہ اس طرف بھی آیا ہوگا اور اس نے کمرے میں ان دونوں کی باتوں کی آوازیں سنی ہوں گی۔ اگر اس وقت اس کے پاس چابی ہوتی تو وہ بڑے آرام سے دروازہ کھول کر جاگیردار نمران کو اس کمرے میں پکڑ سکتا تھا، لیکن اس کے پاس چابی نہیں تھی اور وہ گوپانگ کو اطلاع دینے کے لیے دوڑ گیا تھا۔ زریاب جب سے یہاں آئی تھی اس نے کئی مرتبہ خامس کے قدموں کی چاپ بھی نہیں سنی تھی،
लेकिन इसके साथ गोपांग के कदमों की चाप सुनकर वो दोनों मोहतात हो गए थे और इस तरह नमरान को दीवार में रुपोश होने का मौका मिल गया था। बहरहाल ये तय कर लिया था कि वो इन दरिंदों का शिकार नहीं होगी, वो यहां से हर सूरत निकलेगी, लेकिन इससे पहले वो सारे काम करने होंगे जिनके लिए वो यहां आई थी। और उसने ये भी फैसला कर लिया था कि नमरान को भी उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो इस हकीकत से भी आगाह थी कि गोपांग और खामिस जैसे आदमियों से निमटना आसान नहीं होगा। ये बात भी उसके लिए एक दिलचस्प इंकिशाफ साबित हुई थी कि कुंदन नमरान की बेटी थी, जिसे मरे हुए 10 साल हो चुके थे। उसकी रूह अब भी बाप की तलाश में हवेली में भटक रही थी, लेकिन वो कैसी रूह थी जो इस हवेली में अपने बाप को तलाश नहीं कर सकी थी। रूहों के लिए तो रास्तों की कोई कैद नहीं होती, उनके लिए कोई दीवार कोई दरवाजा रुकावट नहीं बनता, लेकिन वो अपने बाप तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर रही थी। दफातन जरिया आपके जहन में एक और ख्याल उभरा, क्या वाकई वो कुंदन की रूह थी या वो जिंदा थी? वो अपने आप को जिंदा इंसान साबित करने पर बसित थी। ऐन मुमकिन है 10 साल पहले हवेली की फसील से छलांग लगाने के बाद वो मरी ना हो, महज जख्मी हुई हो और वहां से किसी ऐसी जगह जाकर छुप गई हो जहां से उसका सुराग न लगाया जा सका हो, और रखेल शाह और दूसरों ने उसे मुर्दा समझ लिया हो, यहां तक कि उसका बाप भी उसे मुर्दा समझ बैठा हो। वो 10 साल तक रूपोश रहने के बाद अपने बाप की तलाश में वापस आ गई। कुंदन ने बताया था कि बाद में उसे शुगन से हवेली की इत्तलात मिलती रहती थी, और जब उसे पता चला कि उसके बाप को हवेली में कैद कर दिया गया है और वो बीमार है, तो उसने हवेली में दाखिल होकर अपने बाप की तलाश शुरू कर दी। इसका एक मतलब यह भी था कि हवेली में आमद और रफ्त का एक चौथा रास्ता भी था जिससे कुंदन वाकिफ थी। वो उसी रास्ते से हवेली में दाखिल होती थी और फिर पुरस्कार तौर पर गायब हो जाती है। वो हवेली में और भी बहुत से खुफिया रास्तों से वाकिफ थी। गुज़िश्ता रोज वो लेफ्ट विंग की राहदारी से भी पुरस्कार तौर पर गायब हो गई थी। इसका मतलब था कि इस राहदारी की किसी दीवार में भी कोई खुफिया रास्ता मौजूद था। जरिया अब जैसे जैसे सोचती जा रही थी, उसका जहन उलझता जा रहा था। खिड़कियों में अब बहुत मध्यम सा उजाला नजर आने लगा था। रात की तारीकी रुखसत हो रही थी। जरिया अब तकरीबन रात भर की जागी थी। सोचते सोचते उसका जहन भी बुरी तरह थक गया था। उसकी पलकें नींद के बोझ से झुकने लगी और बिलाखिर वो नींद की आगोश में पहुंच गई। नाश्ता करने के बाद जरियाब कमरे से बाहर आ गई। उसके घूमने फिरने पर अब भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। वो इमारत से निकलकर खुले में आ गई। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। गहरे बादल छाए हुए थे। वो हवेली की उस इमारत की तरफ चलने लगी जहां जेर जमीन कमरे में कुंदन की तस्वीर आविज़ा थी और कुंदन से भी मुलाकात हुई थी। वो एक मुख्तसर सी इमारत के ऊपर घूम फिर कर दूसरी तरफ पहुंची ही थी कि ठिठक कर रुक गई। उसे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उससे तकरीबन 30 गज के फासले पर खामिस खड़ा था। उसने 2 कुत्तों की जंजीरें थाम रखी थीं। ऐसे खूंखार कुत्ते जरियाब ने पहली मर्तबा देखे थे। उनकी जबानें बाहर लटकी हुई थीं और वो बुरी तरह हाँप रहे थे। जरियाब को देखकर वो खौफनाक अंदाज में हाँपने लगे। वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे और खामिस जैसे देवकामत शख्स को भी अपने साथ खींच रहे थे। अगर उनकी जंजीरें किसी और के हाथ में होती तो वो खूंखार कुत्ते यकीनन उसे अपने साथ घसीट ले जाते। खामिस ने अजीब से लहजे में गुर्रा कर कुछ कहा और वो खूंखार कुत्ते उसकी आवाज सुनकर हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून हो गए। इस पर जरियाब को बड़ी हैरत हुई थी। जरियाब को तो इस पर भी हैरत थी कि हवेली में ये खूंखार कुत्ते कहां से आ गए थे। हालांकि वो जब से यहां आई थी हवेली में घूमती रही थी और उसने कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज तक नहीं सुनी थी। खामिस ने अजीब सी नजरों से जरियाब की तरफ देखा, फिर कुत्तों से कुछ कहा जैसे कुत्ते उसके हुक्म के ताबे थे। वो सुर्ख ज़बानें लटकाए एक तरफ चलने लगे और खामिस भी उनके पीछे खींचता चला गया। जरियाब कुछ देर वहां खड़ी रही, फिर एक तरफ चलने लगी। वो सारा दिन हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमती रही, मगर कुंदन का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो अपने कमरे में वापस आ गई। रात के खाने के बाद उसने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडा लगाया और उस दीवार को घूरती रही जहां से गुज़िश्ता रात नमरान बरामद हुआ था। आधी रात के लगभग उसने उठकर लैंप की रोशनी में पूरी दीवार को बारीक बीनी से देख डाला, लेकिन उसे कहीं कोई मामूली सा रखना भी नजर नहीं आया था। वो दोबारा बिस्तर पर आकर लेट गई। 2-3 रोज और गुजर गए।
इस दौरान ना तो कुंदन नजर आई और ना ही कमरे की दीवार शक हुई। कभी तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि उस रात उसने कोई ख्वाब तो नहीं देखा था। वो हवेली में उसकी 8वीं शब थी। पहली मर्तबा उसे मायूसी ने घेरा था। वो अजीब मुसीबत में फंस गई थी जिससे बज़ाहिर निजात का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो भी नमरान की तरह इस पुरस्कार हवेली की कैदी बनकर रह गई थी। यही सब कुछ सोचते हुए वो सो गई। सोते में उसे सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। फिर दफातन यूं लगा जैसे उसे कोई गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा हो। उसने गड़बड़ाकर आंखें खोल दी। 2 तारीक साए उस पर झुके हुए थे। ज़रियाब की आंखें दहशत से फैल गईं। वो चीखना चाहती थी कि एक साए ने उसका मुंह दबा दिया। बाहर कहीं दौड़ते हुए कदमों और कुत्तों के भौंकने और गुर्राने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। ज़रियाब अपने आप को उन सायों की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। फिर दफातन उसकी कनपटी पर एक जोरदार हाथ पड़ा और उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। होश में आते ही ज़रियाब को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे कुएं की तह में पड़ी हो। उसके चारों तरफ कब्र किसी गहरी तारीकी थी। उसे दम घुटता हुआ सा महसूस हुआ और उसके दिमाग में धमाके से हो रहे थे। उसने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की तो ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि उसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और पैर भी टखनों के करीब से बंधे हुए थे। वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगी लेकिन तारीकी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बेबसी से पड़ी रही। उसके नीचे खुरदरी जमीन थी और उसे छोटे छोटे कंकड़ जिस्म में चुभते हुए महसूस हो रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से बाएं पहलू पर हो गई। गहरी तारीकी और सन्नाटे में वक्त गुजरने का अंदाजा नहीं हो रहा था। उसे तो यह भी अंदाजा नहीं था कि वो कब से यहां बंधी पड़ी थी। वो तो बस ये जानती थी कि जब से होश में आई थी एक एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस हो रहा था। वो उन दोनों आदमियों के बारे में सोचने लगी जिन्होंने उसे सोते में मजहरी पर दबोचा था। वो दोनों लंबे तड़ंगे थे। उस वक्त अगरचे कमरे में लैंप रोशन था लेकिन आंखें खुलने के बाद उसे इतनी मोहलत नहीं मिली थी कि वो उनमें से किसी की शक्ल देख सकती। अगर उसे कनपटी पर घूंसा या थप्पड़ मारकर बेहोश न किया जाता तो शायद उनमें से किसी एक की या 2 की शक्लें देख लेती। लेकिन अब वो सोच रही थी कि वो दोनों कौन थे और उसे हवेली के उस कमरे से क्यों उठाया गया था। वो गोपांग या खामिस के आदमी तो हरगिज़ नहीं हो सकते थे। उन लोगों को उसे इस तरह अगवा करने की क्या जरूरत थी? वो तो पहले ही उनके कब्जे में थी। लेकिन वो कौन थे और उसे इस तरह अगवा क्यों किया गया था? और फिर ये कौन सी जगह थी? हवेली ही का कोई अंदरूनी हिस्सा था या कोई और जगह? वो लोग उसे यहां बांधकर खुद कहां गायब हो गए थे? दफतन ज़रियाब के जहन में एक और ख्याल उभरा। ऐसी हवेलियों में साजिशों के ताने बाने तो हमेशा से ही बुने जाते रहे हैं। हवेली के एक कमरे से उसका अगवा भी किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। हवेली में खामिस और गोपांग के अलावा और कोई आदमी नहीं था। नमरान को वो देख चुकी थी जिसे बुढ़ापे और बीमारी ने बेहद कमजोर कर दिया था। वो खुद कैद में था। बाहर की दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा था। उसे अगवा करने वाले नमरान के आदमी नहीं हो सकते थे। अलबत्ता ये मुमकिन था कि गोपांग ने बाहर से अपने आदमियों को बुलवाकर उसके अगवा का ड्रामा रचाया हो सकता है उसकी गुमशुदगी के बारे में मालूम करने के लिए किसी ने गोपांग से राब्ता कायम किया हो और गोपांग ने उसे इस तरह वहां से गायब करवा दिया हो। लेकिन इस तरह अगवा कराने का मकसद क्या हो सकता था? उसे तो किसी भी वक्त बड़े इत्मीनान से कत्ल करके रास्ते से हटाया जा सकता था। उसकी लाश हवेली के किसी भी तारीख सुरंग में फेंक दी जाती। इस तरह उसका सुराग लगाना भी मुमकिन ना होता। उसे इस तारीख कब्र में डालकर कहां चले गए थे? दफतन एक और ख्याल से वो कांप उठी। उसने लेफ्ट विंग के एक कमरे में कुर्सी पर एक इंसानी ढांचा बंधा हुआ देखा था। वो भी कभी जीता जागता इंसान था जिसे कुर्सी से बांध दिया गया था और इस तरह कुर्सी पर बंधे हुए वो मौत का लुकमा बन गया था। कितनी अजियतनाक मौत होगी वो, ये सोचकर ही ज़रियाब कांप उठी थी। दफतन वो चौंक गई। वो कुत्तों के भौंकने की आवाजें थीं जो कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थीं। ज़रियाब का चेहरा धुआं हो गया। उन 2 कुत्तों की खौफनाक शक्लें उसके जहन में उभर आई जिन्हें उस रोज उसने खामिस के साथ देखा था। वो नहीं जानती थी कि वो इस हवेली के किस हिस्से में थी या कहीं और, लेकिन उन कुत्तों के भौंकने की आवाजों ने उसे दहलाकर रख दिया था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें मातूम हो गईं। उसे थोड़ी ही देर में कदमों की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। उन आवाजों से साफ लग रहा था कि कोई इस तरफ आ रहा था।
कदमों की आवाजें नुमाया होती जा रही थीं। आवाजें जैसे जैसे करीब आती जा रही थीं, ज़रियाब के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी और बिलाखिर कदमों की वो आवाजें उसके करीब रुक गईं। ज़रियाब आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, लेकिन तारीकी में उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो शख्स जिस तरह तारीकी में चलता हुआ वहां आकर रुका था, उससे अंदाजा होता था कि वो तारीकी में भी देख सकता था, वो अंधेरे में उससे टकरा भी सकता था, लेकिन वो इस तरह उसके करीब आकर रुका था जैसे उसे देख रहा हो। दफतन ज़रियाब को यूं लगा जैसे उसकी आंखों के सामने सूरज तुलू हो गया हो। बड़ी तेज रोशनी थी जिसने उसकी आंखों में चकाचौंध सी पैदा कर दी थी। रोशनी बराह रास्त उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं। रोशनी उसके चेहरे से जरा सी सरक गई। ज़रियाब ने आंखें खोल दी। देर तक तारीकी में रहने से रोशनी से मानूस होने में भी उसे खासा वक्त लगा था। वो अपने सामने खड़े हुए शख्स की तरफ देख रही थी। वो खासा दराज कामत था और उसकी तरफ देखने के लिए ज़रियाब को गर्दन खासी मोड़नी पड़ी थी। उस शख्स के हाथ में टॉर्च थी जिसकी रोशनी एक बार फिर बराह रास्त ज़रियाब के चेहरे पर पड़ने लगी थी। वो शख्स उसके सामने बैठ गया। उसके दूसरे हाथ में चाकू देखकर ज़रियाब की आंखों में खौफ गहरा हो गया। चाकू टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था। ज़रियाब उस शख्स के चेहरे की तरफ देखने लगी। रोशनी के पस मंजर में उस शख्स का चेहरा बड़ा पुरस्कार लग रहा था। मैं तुम्हारे मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा निकाल रहा हूं, शोर मचाने की कोशिश मत करना, उस शख्स ने ज़रियाब के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। ज़रियाब खौफजदा सी नजरों से उसकी तरफ देखती रही। उस शख्स ने चाकू वाला हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया। ज़रियाब की वहशत बढ़ गई। वो अपने चेहरे के ऐन सामने चाकू को देख रही थी। उस शख्स ने ज़रियाब के मुंह से कपड़ा निकाल लिया। ज़रियाब के मुंह से इस कदर तवील और गहरा सांस निकला जैसे गुब्बारे में भरी हुई हवा निकल गई हो। कौन हो तुम? उसने अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। उसके लहजे में खौफ नुमाया था। दोस्त, उस शख्स ने मध्यम लहजे में जवाब दिया। डरने की जरूरत नहीं। दोस्त? ज़रियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। क्या यह तरीका? मजबूरी थी, उस शख्स ने बात काट दी। अगर हम इस तरीके पर अमल ना करते तो तुम्हें वहां से कभी नहीं निकाल सकते थे। मगर तुम हो कौन और मुझे वहां से इस तरह क्यों निकाला गया है? ये कौन सी जगह है? ज़रियाब ने पूछा। मेरा नाम रज़मक है, उस शख्स ने कहा। तुम वहां खतरे में थी, इसलिए तुम्हें वहां से निकाल लिया गया। इस कोशिश में मेरा साथी मारा जा चुका है। उसे खूंखार कुत्तों ने उधेड़ कर रख दिया। ऐसी भयानक मौत मैंने पहले कभी नहीं देखी। एक जिंदा इंसान को दो खूंखार कुत्ते जिस तरह चीर फाड़ रहे थे, तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा उस हवेली से क्या ताल्लुक है? ज़रियाब ने पूछा। मैंने अपना नाम बता दिया है, दूसरे सवालों का जवाब बाद में दूंगा, रज़मक ने कहते हुए टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर डाली और चाकू की नोक उसके पैरों पर लिपटी हुई रस्सियों में फंसाकर जोरदार झटका दिया। रस्सियां कट गईं। रज़मक उठकर ज़रियाब की पुश्त पर पहुंच गया और कलाइयों की रस्सियां भी काट दी। फिर उसे बाजुओं से पकड़कर उठा दिया। ज़रियाब कभी कलाइयां सहलाने लगी और कभी टखने। रस्सों की बंदिश की वजह से कलाइयों और टखनों में जलन सी हो रही थी। तुम्हें जो तकलीफ उठाना पड़ी उसके लिए माजरत चाहता हूं, रज़मक ने कहा। हमारा मंसूबा यह था कि तुम्हें खामोशी से वहां से निकाल लाएं, लेकिन उस बदरू की औलाद खामिस को पता चल गया। खामिस और गोपांग ने हमें रोकने की कोशिश की। उसने हम पर कुत्ते भी छोड़ दिए। मेरा साथी उन्हें धोखा देने के लिए दूसरी तरफ भाग निकला और मैं तुम्हें यहां ले आया। मुझे मालूम था कि मेरा साथी खतरे में है, उसे मेरी मदद की जरूरत थी। मैंने तुम्हें यहां डालकर हाथ पैर बांध दिए और मुंह में अपना रुमाल ठूंस दिया। यह सब कुछ इसलिए किया गया था कि होश में आने के बाद तुम चीखना चिल्लाना ना शुरू कर दो। यहां से कहीं जाने की कोशिश ना करो। इन भूल भुलैयों में अगर कोई फंस जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन ये कौन सी जगह है? हवेली का कोई तहखाना? ज़रियाब ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, रज़मक ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें यहां छोड़ने के बाद मैं दोबारा बाहर चला गया था। खामिस और उसके खूंखार कुत्ते मेरे साथी की तलाश में थे। मैं एक इमारत की बुर्जी पर चढ़ गया। मेरा साथी भी दौड़ता हुआ उसी तरफ आ रहा था। खामिस और कुत्ते भी उसके ताक़ुब में थे। खामिस भारी भरकम होने के बावजूद कुत्तों से ज्यादा तेजी से दौड़ रहा था।
उसने कई गज दूर से मेरे साथी पर छलांग लगा दी। वो नीचे गिर पड़ा। उसने संभल कर खामिस को जोरदार किक लगा दी और खुद उस तरफ छलांग लगाना ही चाहता था कि उन खूंखार कुत्तों ने उसे दबोच लिया। खामिस चंद कदम के फासले पर खड़ा चीख चीख कर कुत्तों से कुछ कह रहा था और कुत्ते लपक लपक कर मेरे साथी पर हमले कर रहे थे। मेरे साथी की भयानक चीखों से फजा गूंज रही थी। वो लहूलुहान हो गया। कुत्ते बदस्तूर उस पर हमला करते रहे। मेरा साथी जमीन पर गिर गया। कुत्ते नुकीले पंजों और खूंखार दांतों से उसे उधेड़ने लगे। मैं दूर बुर्जी पर खड़ा बेबसी से ये सब कुछ देखता रहा और अपने साथी की कोई मदद नहीं कर सका। ऐसी भयानक और अजियतनाक मौत मैंने पहले कभी नहीं देखी। अगर वो कुत्ते ना होते तो मैं भी खामिस से भिड़ जाता। फिर मैंने दफतन खामिस को चौंकते हुए देखा। उसने शायद अपने आसपास मेरी मौजूदगी महसूस कर ली थी। वो बहुत ही अजीब और पुरस्कार आदमी है। वो चारों तरफ देख रहा था और फिर उस इमारत की तरफ आने लगा जिसकी बुर्जी पर मैं मौजूद था। वो चिल्ला चिल्ला कर कुत्तों से भी कुछ कह रहा था, लेकिन कुत्ते अपने शिकार के बखिए उधेड़ने में मसरूफ थे। कम से कम उस वक्त वो खामिस का कोई हुक्म मानने को तैयार नहीं थे। मैं फौरन ही बुर्जी से उतरकर उस इमारत की पिछली तरफ चला गया और खुफिया रास्ते से यहां आ गया। खामिस अभी मुझे उस तरफ तलाश करता फिर रहा होगा। हो सकता है कुछ देर बाद हवेली के बाहर भी हमारी तलाश शुरू हो जाएगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन कहां? जरिया अपने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। किसी महफूज जगह पर, रज़मक ने जवाब दिया। अगर हम इस वक्त यहां से ना निकल सके तो इन्हीं तारीख सुरंगों में फंस कर रह जाएंगे। लेकिन तुम हो कौन? जरिया ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। यह सवाल जवाब का वक्त नहीं है। बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। अब जल्दी से चल पड़ो, हमारा एक एक लम्हा कीमती है। रज़मक ने कहते हुए उसका हाथ पकड़कर उठा दिया। रज़मक की गिरफ्त अगरचे दोस्ताना थी, लेकिन जरिया के पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। रज़मक ने अपने आप को उसका दोस्त और हमदर्द कहा था, लेकिन वो सोच रही थी कि आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाली बात ना हो। ऐसा ना हो कि वो इस पुरस्कार हवेली से निकलकर किसी और मुसीबत में फंस जाए। रज़मक टॉर्च लिए हुए आगे आगे चल रहा था और जरिया उससे 2 कदम पीछे थी। वो एक तवील सुरंग थी जो मुसलसल ढलान की तरफ चली गई थी। सुरंग इतनी कुशादा थी कि उसमें 2-3 आदमी पहलू ब पहलू आसानी से चल सकते थे। छत ज्यादा ऊंची नहीं थी, कहीं कहीं झुककर चलना पड़ रहा था। इस सुरंग में 2-3 मोड़ भी आए थे। ये सुरंग शैतान की आंत की तरह तवील होती जा रही थी। जरिया उस रात भी कुंदन के साथ जेरे जमीन सुरंगों में घूमती रही थी, लेकिन उस रोज भी और आज भी उसने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि इन सुरंगों में घुटन का एहसास बिल्कुल नहीं था। उन्हें कुछ इस तरह तामीर किया गया था कि हवा का एहसास रहता था। एक मोड़ घूमते ही ताजा हवा का झोंका जरिया के चेहरे से टकराया, लेकिन चंद गज मजीद आगे चलने के बाद सुरंग न सिर्फ तंग हो गई थी बल्कि उसकी छत नीची हो गई थी। वो दोनों बहुत झुक कर चल रहे थे। बिलाखिर सुरंग खत्म हो गई। वो खुली जगह पर निकल आए थे। ये देखकर जरिया को जरा भी हैरत नहीं हुई थी कि उसके चारों तरफ कांटेदार कद्दे आदम झाड़ियां फैली हुई थीं। हशरातुल अर्ज की आवाजें और हवा से हिलती हुई झाड़ियों की सरसराहट अजीब पुरस्कार सा तासुर पैदा कर रही थी। वो जिस जगह से बाहर निकले थे उसे देखकर यूं लगता था जैसे ये किसी जानवर के रहने का ठिकाना हो। बास जानवर रहने के लिए जमीन खोदकर छोटी सी सुरंग बना लेते हैं। ये सुरंग बिल्कुल वैसी ही थी। इस तंग से दहाने के साथ ही बाएं तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। रज़मक ने टॉर्च जरिया के हवाले कर दी और पत्थर को दोनों हाथों से धकेलने लगा। उसे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। पत्थर अपनी जगह से सरक कर सुरंग के दहाने पर इस तरह फिट हो गया जैसे सदियों से उसी जगह पड़ा हो। रज़मक ने जरियाब के हाथ से टॉर्च लेकर बुझा दी। एकदम तारीकी छा गई। जरियाब की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया था। कुछ देर बाद उसकी आंखें तारीकी में देखने के काबिल हुईं तो वो गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। दरअसल ये वो समा था जब रात की तारीकी दिन के उजाले को जगह देने के लिए रुखसत होने की तैयारी कर रही थी। चारों तरफ कद्दे आदम कांटेदार झाड़ियां और गुंजान दरख्त थे। रज़मक ने जरियाब को इशारा किया और उन झाड़ियों में एक तरफ चलने लगा। जरियाब उसके पीछे चलने लगी। कांटेदार झाड़ियों में उसके कपड़े उलझ रहे थे। वो तकरीबन 50 गज आगे निकले होंगे कि फजा में कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई थी। जरियाब बदहवासी होकर लड़खड़ा गई और दाएं तरफ झाड़ियों में गिरी, और जब उसने संभल कर आगे बढ़ना चाहा तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मारे खौफ के उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। उसे यूं लगा था
जैसे किसी ने पीछे से उसकी कमीज पकड़ ली हो। रज़मक चंद कदम आगे निकल चुका था। वो ज़रियाब की चीख सुनकर तेजी से मुड़ा। खौफनाक चाकू अचानक ही उसके हाथ में आ गया था। वो एक ही छलांग में ज़रियाब के करीब पहुंच गया। ज़रियाब सहमी हुई सी खड़ी थी। रज़मक को सूरत हाल को समझने में देर नहीं लगी। वो ज़रियाब के पिछली तरफ पहुंच गया और एक झाड़ी में फंसा हुआ उसका कमीज का दामन छोड़ा दिया। ज़रियाब के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। मेरा ख्याल है कि गोपांग हवेली के बाहर इस जंगल में हमें तलाश कर रहा है। उसके साथ गालिबन कोई शिकारी कुत्ता भी है। हमें जल्द से जल्द इस इलाके से दूर निकल जाना चाहिए, रज़मक ने कहा। वो दोनों एक बार फिर झाड़ियों में चलने लगे। ज़रियाब के लिए चलना दुश्वार हो रहा था कि कपड़े बार बार झाड़ियों में उलझ रहे थे। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ एक बार फिर सुनाई देने लगी। इस मर्तबा ये आवाज़ कदरे करीब से आती हुई महसूस हुई थी। वो और भी तेजी से चलने लगे थे। अंधेरा रुखसत हो रहा था। हल्का हल्का उजाला नमूदार होने लगा था। झाड़ियां अब छिद्री हो गई थी, लेकिन दरख्त खासे गुंजान थे। तारीकी छट जाने से अब रास्ता देखने में आसानी हो गई थी। कुत्ते के भौंकने की आवाज अब बार बार सुनाई दे रही थी। रज़मक ने दाएं हाथ में चाकू पकड़ रखा था और वो बार बार मुड़कर कभी पीछे और कभी इधर उधर देखने लगता। उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली थी। अब ज़रियाब आगे और रज़मक पीछे चल रहा था। कुत्ते के भौंकने की आवाज इस मर्तबा बहुत करीब से सुनाई दी थी। इसके साथ ही किसी आदमी की आवाज भी सुनाई दी थी। वो गालिबन बहुत दूर था और वो कुत्ते का नाम लेकर पुकार रहा था। तुम इस तरफ निकल जाओ, रज़मक ने रुककर एक तरफ इशारा किया। यहां से करीबन निस्फ मील दूर एक नदी है। तुम पुलिया की दूसरी तरफ मेरा इंतजार करना। मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूं। ज़रियाब का चेहरा धुआं हो गया। वो बुज़दिल नहीं थी, लेकिन पे दर पे पेश आने वाले पुरस्कार वाकयात और अजीब व गरीब हालात ने उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ बिठा दिया था। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि यह रज़मक कौन है और उसे हवेली से निकालकर कहां ले जा रहा है। वो हवेली से नहीं निकलना चाहती थी। खुसूसन इस रात जागीरदार नमरान से मुलाकात के बाद तो उसने तय कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में हवेली से नहीं जाएगी। उसे न सिर्फ अपनी किताब के लिए दस्तावेजात की जरूरत थी, बल्कि वो नमरान के खिलाफ जागीर के मैनेजर रखेल शाह की साजिश और हवेली के सरबस्ता राज भी मालूम करना चाहती थी। सबसे बड़ा राज तो यह था कि उसके बाप के पुराने कागजात से बरामद होने वाली तस्वीरों और खुद उसके बाप का इस हवेली से क्या ताल्लुक था। वो और भी बहुत कुछ मालूम करना चाहती थी। इसलिए उसने हर हालत में हवेली में रहने का फैसला किया था। लेकिन रज़मक हमदर्द बनकर उसे हवेली से निकाल लाया था, क्योंकि रज़मक के कहने के मुताबिक उसे हवेली में खतरा था। जाओ, देर मत करो, रज़मक ने उसे हाथ से पकड़कर आहिस्ता से आगे धकेल दिया। रज़मक के हाथ के लम्स से ज़रियाब के जिस्म में एक बार फिर सनसनी की लहर सी फैल गई। वो चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही, फिर मुड़कर तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज अब करीब आती हुई महसूस हो रही थी। रज़मक चंद लम्हे वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, फिर वो भी एक तरफ दौड़ने लगा। वो जानबूझकर इस तरह दौड़ रहा था कि ज्यादा से ज्यादा आवाज पैदा हो। तकरीबन 200 गज का फासला तय करके वो रुक गया। उस जगह झाड़ियां बहुत छोटी थीं। वो दरख्त के तने से टेक लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। दफतन वो चौंक गया। झाड़ियों में किसी जानवर के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर वो आवाज रुक गई। रज़मक दरख्त की आड़ से निकल आया और इसके साथ ही उसके होंठों पर बहुत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उससे तकरीबन 10 गज के फासले पर वो कुत्ता खड़ा था, बिल्कुल दुबला पतला मगर कामत में किसी कदर लंबा। उसकी रंगत भूरी थी और कहीं कहीं सफेद भी नजर आ रहा था। वो शिकारी कुत्ता था। कुत्ते के हलक से खौफनाक गुर्राहटें निकल रही थीं। उसके अगले पैर किसी कदर आगे को निकले हुए थे। वो अपने शिकार पर हमला करने के लिए पर तोल रहा था। वो अपने पंजों को आहिस्ता आहिस्ता हरकत दे रहा था, गालिबन हमले के लिए पोजीशन दुरुस्त कर रहा था। रज़मक के होंठों पर मुस्कुराहट बतदरीज करख्तगी में बदलती चली गई और फिर उसके चेहरे पर उस दरिंदे से ज्यादा करख्तगी आ गई जो उसके सामने खड़ा था। रज़मक के दाएं हाथ में चाकू था। उसने चाकू फेंक दिया और दोनों हाथ आगे निकाल लिए। उन्हें देखकर कहा जा सकता था कि वो दोनों दरिंदे एक दूसरे पर हमला आवर होने को तैयार थे। कुत्ते ने गुर्राते हुए अचानक ही अपनी जगह से छलांग लगा दी। छलांग लगाने से पहले वो इस तरह झुका था कि पेट जमीन से जा लगा और फिर वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला था। रज़मक भी बिल्कुल तैयार खड़ा था। कुत्ते को छलांग लगाता देखकर वो किसी कदर नीचे झुक गया। उसके हाथ बदस्तूर सामने को निकले हुए थे। कुत्ता हवा में उड़ता हुआ जैसे ही उसके ऊपर पहुंचा, रज़मक ने बड़ी फुर्ती से एक तरफ झुकते हुए दोनों हाथ उसके गले पर डाल दिए।
शिकारी कुत्ता मिंजनीक से निकले हुए वजनी गोले की तरह पूरी कुव्वत से उस पर आया था। उसके बोझ से रजमख लड़खड़ाकर पुश्त के बल गिरा। कुत्ता भी दरख्त से जा टकराया। रजमख ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए कलाबाजी खाई और इस तरह कुत्ते का गला दबोच लिया कि उसके पंजे उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। शिकारी कुत्ता बुरी तरह मचल रहा था। रजमख ने पूरी कुव्वत से उसका गला दबोच रखा था। उसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। उसकी गिरफ्त सख्त से सख्त तर होती जा रही थी। कुत्ता अपने जिस्म को बुरी तरह पटक रहा था, लेकिन उसकी मुजामत बतदरीज कमजोर पड़ती चली गई और बिलाखिर वो बेहिस्सो हरकत हो गया। मगर रजमख ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। उसने 2-3 जोरदार झटके दिए। कड़क की हल्की सी आवाज उभरी। कुत्ते की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। रजमख ने 1-2 और झटके दिए और कुत्ते को छोड़कर अलग हो गया। उठते हुए उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन फौरन ही संभल गया और दरख्त के तने से टेक लगाकर खड़ा हो गया। लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसका जिस्म पसीने में तर हो गया था। इस खूंखार परिंदे से मुकाबला करने का फैसला करके उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। कुत्ते का एक पंजा या दांत भी उसके जिस्म पर कहीं लग जाता तो खुद उसका बचना भी मुश्किल हो जाता। अपनी हालत पर काबू पाने के बाद उसने चाकू उठाया। कुछ देर तक इधर उधर देखा और किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करता रहा। फिर तेजी से उस तरफ चलने लगा जिस तरफ ज़रियाब गई थी। ज़रियाब तकरीबन दौड़ती हुई जा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और लिबास झाड़ियों में उलझ रहा था। एक मर्तबा वो लड़खड़ाई तो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और झाड़ियों में गिर गई। उठने की कोशिश में उसकी बाहों पर कुछ खराशियां आ गईं। दाएं कंधे के करीब से कमीज कांटों में उलझ गई थी। उसने पहले अपने हाथों से कमीज छुड़ाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी तो एक जोरदार झटका दिया। कमीज फट गई थी, लेकिन कांटों से भी निजात मिल गई। उसका कंधा बरहना हो गया था। फजा अब सफेदे में बदल रही थी। ज़रियाब को उस रात का तजुर्बा याद था जब वो कमाल के साथ स्टेशन से हवेली की तरफ आ रही थी। अगरचे उस वक्त दिन तुलू हो रहा था, लेकिन उस पर खौफ तारी था। जंगली दरिंदों का खौफ और गोपांग का खौफ जो उसकी तलाश में कुत्तों को लेकर इसी जंगल में घूम रहे थे। बहुत देर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई नहीं दी थी। अलबत्ता कभी कभी गोपांग की आवाज सुनाई दे जाती, जो गालिबन अपने कुत्ते को आवाजें दे रहा था। ज़रियाब दौड़ते दौड़ते बुरी तरह थक गई थी। उसका सांस फूल गया था और टांगें कांपने लगी थीं। उसने इधर उधर देखा और एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ी हो गई। जंगल बहुत घना था। दरख्तों के ऊपर की शाखें अगरचे हवा से झूम रही थीं, लेकिन नीचे हवा बहुत कम थी, जिससे घुटन का सा एहसास हो रहा था। दफातन दाएं तरफ झाड़ियों में तेज सरसराहट की आवाज सुनकर वो चौंक गई और झाड़ियों की तरफ देखने लगी। झाड़ियों में सरसराहट की आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर घात लगाए दबे कदमों आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ज़रियाब के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो वहशतज़दा नजरों से झाड़ियों की तरफ देखने लगी। दफातन एक जगह झाड़ियां तेजी से हिली और एक जानवर लपकता हुआ नजर आया। ज़रियाब के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो सफेद रंग का एक खरगोश था जो झाड़ियों से निकलकर उसके सामने भागता हुआ दूसरी तरफ निकल गया था। उसके पीछे ही एक लोमड़ी भी झाड़ियों से निकलकर भागी थी। ज़रियाब का दिल बड़ी शिद्दत से धड़क रहा था। उसने हाथ सीने पर रखा हुआ था। उसके दिल की धड़कन अभी पूरी तरह काबू में नहीं आई थी कि गोपांग की आवाज सुनकर वो एक बार फिर उछल पड़ी। वो अब भी अपने कुत्ते का नाम लेकर पुकार रहा था। आवाज ज्यादा दूर की भी नहीं थी। लगता था जैसे वो 100-150 गज के फासले पर हो। ज़रियाब एक बार फिर भाग खड़ी हुई। रजमख ने कहा था कि वो नदी की पुलिया की दूसरी तरफ उसका इंतजार करे, लेकिन वो अभी तक नदी पर नहीं पहुंची थी। वो खौफजदा हिरनी की तरह दौड़ती रही और बिलाखिर नदी पर पहुंच गई। नदी तकरीबन 6 फुट चौड़ी थी। उसके दोनों किनारों पर सरकंडे से मिलती जुलती तवील कामत झाड़ियां थीं। ज़रियाब हैरान नजरों से इधर उधर देख रही थी। पुलिया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और नदी भी इतनी चौड़ी थी कि वो छलांग लगाकर पार नहीं कर सकती थी। अपने अकब में झाड़ियों में दौड़ते हुए कदमों की आवाज ज्यादा दूर की नहीं थी। वो यकीनन गोपांग था जो अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था। ज़रियाब का दिल खिज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। वो जानती थी कि अगर झाड़ियों में कहीं भी छुपी तो उसे तलाश कर लिया जाएगा। वो छुपने के लिए चारों तरफ देख रही थी। दफतन उसके जहन में एक और ख्याल उभरा। उसने सरकंडे नुमा पौधे की एक शाख तोड़ी। उस शाख की मोटाई हाथ की उंगली के बराबर थी। उसने बड़ी फुर्ती से एक पूरी पोर अलग कर ली। तकरीबन 2 बालिश लंबी ये पोर अंदर से खोखली थी। शाख सूखी हुई थी और उसके तोड़ने से चड़क की आवाजें उभरी थीं। उसने मुड़कर देखा और झाड़ियों में घुसकर नदी में उतर गई।
वो किनारे से ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी। झाड़ियां पानी पर झुकी हुई थीं और पानी उसके सीने तक था। वो पानी में खड़ी झाड़ियों से बाहर देखती रही। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। वो गोपांगी था जो अब दौड़ता हुआ सामने आ गया था। वो नदी के किनारे से तकरीबन 10 गज के फासले पर रुक गया। भाग दौड़ से उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था। कमीज पसीने में तर थी। चेहरे और गर्दन पर भी पसीने की धारें बह रही थीं। वो कुछ देर वहां खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर आगे बढ़ने लगा। जरिया अपने खोखली शाख का एक सिरा मुंह में डाल दिया, दूसरे हाथ से नाक दबा ली और बड़ी आहिस्तगी से पानी में इस तरह बैठ गई कि खोखली शाख का दूसरा सिरा पानी से बाहर था। वो इसी नलकी के जरिए सांस ले रही थी। गोपांग नदी के किनारे पर झाड़ियों के करीब आकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। उसकी नजरें ऊपर थीं। नदी के पानी की तरफ देखने की उसने जरूरत महसूस नहीं की थी। जरिया अपने चुटकी से अपनी नाक दबा रखी थी और दूसरे हाथ से नलकी को संभाल रखा था। उसे अगरचे नलकी के जरिए सांस लेने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि इस तरह ज्यादा देर पानी में नहीं रह सकती थी। 2 मिनट गुजर गए। फिर दौड़ते हुए कदमों की मध्यम सी आवाजें उसकी समाज से टकराई। चंद सेकंड्स के बाद उसने बड़ी आहिस्तगी से सर पानी से बाहर निकाला और नलकी मुंह से निकालकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसके साथ ही उसने किनारे की झाड़ियों में से झांक कर देखा। उसे गोपांग नजर नहीं आया। अलबत्ता दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी जो लम्हा ब लम्हा दूर होती जा रही थी। जरिया चंद मिनट और पानी में बैठी रही। फिर दफातन उसे दाएं टांग पर सरसराहट सी महसूस हुई। उसे यूं लगा जैसे कोई चीज उसकी टांग से लिपट रही हो। सांप! इस ख्याल के आते ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया और वो बड़ी बदहवासी में किनारे की झाड़ियां पकड़कर नदी से बाहर आ गई। नदी से बाहर निकलते उसका पैर फिसला और वो औंधे मुंह किनारे पर गिरी। वो चीज अब भी उसकी टांग से लिपटी हुई थी। उसने गर्दन घुमाकर खौफजदा नजरों से टांग की तरफ देखा। इसके साथ ही उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। बेलनुमा झाड़ी उसकी टांग से लिपटी हुई थी। जरिया को अपने आप पर बड़ा गुस्सा आया था। वो इतनी बुज़दिल हो गई थी कि बात बात पर डरने लगी थी। उसने बेलनुमा वो झाड़ी टांग से हटाकर एक तरफ फेंक दी और कुछ देर तक किनारे की घास पर लेटी लंबे लंबे सांस लेती रही। फिर उठकर खड़ी हो गई। उसके कपड़े जिस्म से चिपके हुए थे और पानी निचड़ रहा था। वो कुछ देर वहां खड़ी उस तरफ देखती रही जहां गोपांग गया था। वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। जरिया अब नदी की खाड़ियों के साथ साथ बाएं तरफ चलने लगी। रज़मक ने किसी पुलिया के बारे में कहा था और उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिया किस तरफ हो सकती है। वो यूं ही एक तरफ चल रही थी। तकरीबन 50 गज का फासला तय करने के बाद उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। वो पुलिया पर पहुंच गई थी। पुलिया क्या थी? 2 कटे हुए दरख्तों के तने एक दूसरे के साथ मिलाकर नदी पर डाल दिए गए थे। उस पुलिया पर से सिर्फ पैदल ही आमद और रफ्त हो सकती थी। जाहिर है यहां किसी सवारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था जिसके लिए बाकायदा पुलिया बनाई जाती। सूरज तुलू हो चुका था। दरख्तों की चोटियों पर धूप चमक रही थी। दरख्त इस कदर घने थे कि बहुत कम धूप पत्तों और शाखों से छनकर जमीन तक पहुंच रही थी। पुलिया पार करने के बाद जरियाब कुछ आगे जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। ये ऐसी जगह थी कि वो खुद तो पुलिया से गुजरने वाले किसी भी शख्स को बआसानी देख सकती थी, लेकिन उसे आसानी से नहीं देखा जा सकता था। जरियाब बुरी तरह थक गई थी। रात के पिछले पहर उसे सोते में से उठाया गया था और उस वक्त से अब तक मुसलसल भाग दौड़ हो रही थी। एक अनजाने खौफ ने उसे मुसलसल गिरफ्त में ले रखा था। हालात ने अचानक ही हैरत अंगेज पलटा खाया था। पहले वो हवेली की कैद में थी। जागीरदार नमरान से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। अगरचे कई रोज से वो दोबारा सामने नहीं आया था, लेकिन जरियाब को ये उम्मीद तो थी कि उससे फिर मुलाकात होगी। हो सकता है वो ज्यादा बीमार हो गया हो या उसका ये राज खुल गया हो कि वो किसी खुफिया रास्ते से जरियाब से मिलने गया था और उसे हवेली के किसी और हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया हो। लेकिन इस दौरान ये दोनों पुरस्कार आदमी बीच में टपक पड़े और उसे उठाकर ले आए। इसी कोशिश में दोनों में से एक कुत्तों का शिकार हो गया था। दूसरा आदमी रज़मक उसे किसी खुफिया रास्ते से हवेली से निकाल लाया था। लेकिन रज़मक कौन था? उसे इस तरह हवेली से क्यों निकाला गया था, ये वो अब तक नहीं जान सकी थी। जरियाब के जहन में खामिस का ख्याल उभरा। वो तो पागल हो रहा होगा। खामिस ने उसकी तलाश में हवेली का कोना कोना छान मारा होगा और अब भी उसे हवेली में तलाश करता फिर रहा होगा। गोपांग बहुत जल्द हवेली से बाहर आ गया था। उसे यकीन हो गया होगा कि जरियाब हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। वो उसे जंगल में तलाश करता फिर रहा था और उसके बहुत करीब से गुजर गया था।
रज़मक उसे नदी की तरफ जाने का मशवरा देकर कहीं गायब हो गया था। दफतन ज़रियाब के जहन में एक और ख्याल उभरा और इसके साथ ही उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर रज़मक भी कुत्ते का शिकार हो गया या ज़रियाब उसके बताए हुए रास्ते के बजाय किसी और तरफ निकल आई हो तो वो पुलिया दूसरी तरफ भी तो हो सकती थी। बहरहाल सवाल यह था कि अगर रज़मक उसे नहीं मिला तो फिर क्या होगा? वो इस जंगल में कहां जाएगी? उसे तो वापसी का रास्ता भी मालूम नहीं था, और अगर किसी तरह वो झाड़ियों में इसी खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो भी गई तो हवेली के नीचे सुरंगों का जाल बिछा हुआ था। वो सुरंगों की उन भूल भुलैयों में भटक कर रह जाएगी और एड़ियां रगड़ रगड़ कर खत्म हो जाएगी। किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। गोपांग और खामिस भी चैन से बैठने वाले तो नहीं थे। ज़रियाब उनके एक खौफनाक राज से वाकिफ हो चुकी थी। उसे पता चल गया था कि उन लोगों ने जागीरदार नमरान को कैदी बनाकर रखा था और ज़रियाब ये राज लेकर हवेली से निकल गई थी। वो मीलों दूर तक जंगल छान मारेंगे और उसे जिंदा बचकर नहीं जाने देंगे। उन्हें यह तो नहीं मालूम था कि ज़रियाब को हवेली से जबरदस्ती निकाला गया था। वो तो यही समझ रहे होंगे कि हवेली के बाहर ज़रियाब के हिमायती मौजूद थे, जिन्हें खुफिया रास्तों का भी इल्म था, और ज़रियाब उनके साथ भाग निकली थी। सूरत हाल निहायत खौफनाक थी। उसे जल्द से जल्द यहां से ज्यादा दूर निकल जाना चाहिए था, लेकिन कहां जाए? उसे जंगल में किसी रास्ते का इल्म नहीं था। वो जंगल में भटक कर दोबारा गोपांग या खामिस के हाथ लग सकती थी। उसे वहां बैठे हुए 1 घंटा गुजर गया था। उसके कपड़ों से अभी तक पानी निचड़ रहा था। वो सोच रही थी कि अगर मजीद 5-10 मिनट तक रज़मक नहीं आया तो वो उठकर चल देगी। उस हवेली में आने के दूसरे ही दिन उसने छत पर से वो चट्टानें देखी थीं, जिनके बारे में गोपांग ने बताया था कि हवेली से दरवेशपुर तक सड़क बनाने के लिए उस चट्टान को तोड़ा जा रहा है। उन चट्टानों पर मजदूर काम करते थे और जाहिर है वहां मजदूरों की कोई छोटी सी बस्ती भी होगी। अगर वो उन चट्टानों तक पहुंच जाए तो उसे यकीनन मदद मिल सकती थी, लेकिन वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो चट्टानें किस तरफ थीं। हो सकता है वो चट्टानें हवेली के दूसरी तरफ हों। आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस मर्तबा आवाज बहुत करीब से सुनाई दी थी। इसके थोड़ी ही देर बाद किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने गालिबन कुत्ते का नाम लेकर कुछ कहा था। ये खामिस है। ज़रियाब हकला कर रह गई। यहां रुक जाओ, रज़मक ने कहा, और फिर बड़ी फुर्ती से जेब से चाकू निकाल लिया। वो बड़े फुर्तीले अंदाज में इधर उधर देख रहा था। ज़रियाब एक दरख्त के तने से टेक लगाकर अपने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए और फिर वो सामने आ गए। खामिस घोड़े पर सवार था और उसके साथ ही कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था। ये उन्हीं खूंखार कुत्तों में से एक था जो ज़रियाब ने उस रोज हवेली में देखे थे। खामिस ने भी रज़मक को देख लिया था। उसने चीख कर कुत्ते से कुछ कहा था। कुत्ता कई फुट लंबी छलांगे लगाता हुआ रज़मक की तरफ दौड़ने लगा। रज़मक ने चाकू एक मखसूस अंदाज में पकड़ लिया था। उसकी नजरें कुत्ते पर मरकूज थीं। कुत्ता तकरीबन 10 गज दूर ही था कि रज़मक का हाथ हरकत में आ गया। चाकू उसके हाथ से निकलकर बिजली के कोंदे की तरह कुत्ते की तरफ लपका और फिर दूसरे ही लम्हे कुत्ते के हलक से खौफनाक कुर्राहट निकली। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। चाकू दस्ते तक उसके हलक में बेबस था। खामिस करीब पहुंच गया था। उसने घोड़े पर से रज़मक पर छलांग लगा दी। रज़मक ने उसे हाथों पर रोका और सर से ऊपर उठाकर एक तरफ पटक दिया। ज़रियाब की आंखें हैरत से फैल गई। रज़मक ने किस कदर आसानी से खामिस जैसे देवजात को उठाकर दूर फेंक दिया था। उसका घोड़ा भी कुछ दूर जाकर रुक गया था। खामिस देवकामत होने के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर फुर्तीला साबित हुआ था। उसने उठने में 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाया। वो संभलते ही रज़मक पर झपटा। उसकी लात रज़मक की पसलियों पर पड़ी। वो लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। खामिस फिर उसकी तरफ लपका। ज़रियाब अच्छी तरह जानती थी कि अगर रज़मक शिकस्त खा गया तो खुद उसका बचना भी मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उसने भी खामिस के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। वो मार्शल आर्ट की माहिर थी। मौजूदा सूरत हाल ने उसमें हिम्मत पैदा कर दी थी और वक्त का तकाजा भी यही था कि वो भी कुछ कर दिखाए। वो दरख्तों की आड़ से निकल आई। इधर, उसने खामिस को मुतवज्जे किया। उसके लहजे में लर्जिश थी और दिल की धड़कन भी तेज थी। खामिस उसकी तरफ मुड़ा। उसने ज़रियाब को पहले नहीं देखा था। उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। ज़रियाब ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और पूरी कुव्वत से उछलकर खामिस को फ्लाइंग किक मारी। उसका एक पैर खामिस के सर पर और दूसरा गर्दन पर लगा था। वो बिलबिलाता हुआ नीचे गिरा। इस दौरान रज़मक को भी संभलने का मौका मिल गया और फिर उन दोनों ने खामिस को छाप लिया। खामिस बड़ा सख्त जान साबित हुआ। उसे ढेर करने में 10 मिनट लग गए।
मर गया? जरियाब ने हाँफते हुए सवालिया निगाहों से रज़मक की तरफ देखा। नहीं, इस किस्म के लोग आसानी से नहीं मरा करते, रज़मक ने जवाब दिया और मुर्दा कुत्ते के गले में बेवस चाकू निकालकर खामिस के कपड़ों से साफ करने लगा। खामिस बेहोश था और कुत्ते की लाश के करीब ही पड़ा था। रज़मक ने चाकू बंद करके जेब में रख लिया और कुछ दूर घास चरते हुए घोड़े को पकड़ लाया। वो दोनों घोड़े पर सवार हो गए। जरियाब पीछे बैठी थी। वो कदरे आगे झुकी हुई रज़मक से लिपटी हुई थी। तकरीबन 2 घंटे के सफर के बाद वो जंगल से निकल आए। आगे बंजर जमीन थी और फिर खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। वो एक छोटी सी बस्ती से कतराते हुए निकल गए और मजीद 1 घंटे के सफर के बाद एक बहुत बड़े खंडर के करीब पहुंच गए। ये खंडर एक टीले पर था। किसी जमाने में ये कोई बहुत ही शानदार इमारत रही होगी। रज़मक ने तकरीबन 200 गज दूर ही टाहली के एक दरख्त के नीचे घोड़ा रोक लिया। दरख्त के साए में एक औरत बैठी हुई थी। सफेद लिबादे में लिपटी हुई उस औरत का चेहरा सफेद चादर में छुपा हुआ था। जरियाब घोड़े से उतर आई। दरख्त के नीचे बैठी हुई औरत उठकर खड़ी हो गई। उसने चेहरे से चादर हटा दी। जरियाब उसका चेहरा देखकर उछल पड़ी। वो कुंदन थी जो मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। तो तुम? जरियाब हकला कर रह गई। उसकी नजरें कुंदन के चेहरे पर मरकूज थीं, जो बदस्तूर मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। हाँ, मैं कुंदन हूं, लेकिन तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? कुंदन ने कहा। जरियाब जवाब देने के बजाय कुंदन के चेहरे को घूरती रही। फिर उसने टीले पर खंडरों की तरफ देखा। उसकी नजरें रेंगती हुई रज़मक के चेहरे तक गईं। जरियाब ने उसे सवाल किया, तो तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? आकाज़ादी के हुक्म पर। रज़मक ने कुंदन की तरफ इशारा किया। हवेली में तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी। आकाज़ादी का हुक्म था कि तुम्हें हर कीमत पर हवेली से निकाल लिया जाए। आकाज़ादी? जरियाब उलझी हुई निगाहों से कुंदन की तरफ देखने लगी। तुम्हें शायद अभी तक यकीन नहीं आया। कुंदन के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैं भी तुम्हारी और रज़मक की तरह गोश्त पोस्ट की इंसान हूं। लो, मुझे छू कर देखो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जरियाब की आंखों में उलझन तैर गई। उसने रज़मक की तरफ देखा और फिर कुंदन के चेहरे पर नजरें जमाती और उसके हाथ को छूने के बजाय एक सवाल कर डाला। 10 साल पहले क्या हुआ था? ओह, कुंदन चौंक गई। उसका चेहरा धुआं हो गया। 10 साल पहले? वो खामोश होकर जरियाब की तरफ देखने लगी। तुम्हें क्या मालूम है? 10 साल पहले तुमने रखेल शाह से अपनी जान बचाने के लिए हवेली की फसील से छलांग लगा दी थी। तुम्हारी लाश शायद जंगली जानवर घसीट कर ले गए थे, जिसका सुराग नहीं मिल सका। ओह अच्छा, तो तुम बहुत कुछ जान चुकी हो। कुंदन ने गहरा सांस लेते हुए कहा। ये बातें यहां खड़े रहकर नहीं हो सकती। आओ, इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। वो रज़मक की तरफ घूम गई। सद्दू कहां है? वो हमसे बिछड़ गया है आकाज़ादी, रज़मक ने जवाब दिया। मेरी आंखों के सामने खामिस के खूंखार कुत्तों ने उसे चीर फाड़ डाला और मैं उसकी कोई मदद ना कर सका। बेचारा, कुंदन के मुंह से निकला। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मैं भी जरियाब को लेकर जा रही हूं। रज़मक घोड़े पर बैठ गया। उसने जरियाब की तरफ देखा और घोड़े को हल्की सी एड़ लगा दी। घोड़े का रुख खंडरात वाले टीले के दाएं तरफ था। वो कुछ देर तक रज़मक को देखती रही, फिर खंडरों की तरफ देखने लगी। वो किसी बहुत ही शानदार इमारत के खंडर थे। कुछ दीवारें और सुतून अब भी अपनी जगह पर कायम थे। उन सुतूनों को देखकर यह अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था कि यहां जो भी इमारत थी उसका तर्ज तामीर यूनानी था। चलो जरियाब, कुंदन की आवाज सुनकर वो चौंक गई। ज्यादा देर यहां खड़े रहना मुनासिब नहीं है। जरियाब ने कुंदन की तरफ देखा। कुंदन मुस्कुराती हुई एक तरफ चलने लगी। जरियाब ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर वो भी उसके पीछे चल पड़ी। वो दोनों आगे पीछे एक तंग सी पगडंडी पर चल रही थीं। जरियाब का ख्याल था कि कुंदन भी उस तरफ जाएगी जिस तरफ रज़मक किया था, लेकिन उसका ख्याल गलत निकला। उसका रुख खंडर वाले टीले की तरफ था। जरियाब खामोशी से उसके पीछे चल रही थी। बिलाखिर वो खंडरों में पहुंच गई। जरियाब चारों तरफ देख रही थी। चमकती धूप में खंडर तप रहे थे। ये इमारत सुर्ख पत्थरों से तामीर की गई थी। चारों तरफ सुर्ख पत्थर बिखरे हुए थे। शिकस्ता दीवारें और बुलंदोबाला सुतून चमकती हुई धूप में अजीब पुरस्कार सा तासुर दे रहे थे।
कुंदन उन खंडरों में इस तरह चल रही थी जैसे उन खंडरों में ये तमाम रास्ते उसके देखे वाले हों। वो जरियाब से चंद कदम आगे थी। तेज हवा से उसका सफेद लिबादा हवा में उड़ रहा था। उसने एक हाथ में चादर और दूसरे हाथ में लिबादा संभाल रखा था। बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहती हो कि जरियाब उसके पीछे आ रही थी या नहीं। जरियाब को यूं लग रहा था जैसे वो किसी कदीम शहर की तंग सी गलियों में घूम रही हो। एक जगह वो रुक गई। बिखरे हुए पत्थरों में एक जगह किसी जानवर का एक मुजस्मा भी पड़ा था। मुजस्मा टूटा हुआ था, उसका सर भी गायब था, लेकिन उस मुजस्मे की साख से यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो शेर का मुजस्मा था। शेर जिसे ताकत की अलामत समझा जाता था। ये इमारत भी शायद उस इलाके में ताकत की अलामत समझी जाती होगी, लेकिन वक्त के बेरहम हाथों ने उसे मलिया मेट कर दिया था। आओ जरियाब, रुक क्यों गई? कुंदन की आवाज सुनकर जरियाब चौंक गई और रास्ते में बिखरे हुए पत्थरों से बचती हुई आगे बढ़ने लगी। उन खंडरों में कई चक्कर काटने के बाद कुंदन एक जगह रुक गई। उससे चंद गज आगे एक मीनार सा नजर आ रहा था। तकरीबन 30 फुट बुलंद उस मीनार की दीवारों पर बड़े खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे, लेकिन हवादिस ज़माना ने उनकी नक्शो निगारी को बुरी तरह मुतासिर किया था। लेकिन जरियाब को यह जानकर हैरत हुई कि उस मीनार में दाखिले का कोई रास्ता नहीं था। उसने मीनार के चारों तरफ घूम कर देख लिया। उसे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई थी जिससे उस मीनार में दाखिल हुआ जा सकता हो। ये गोल मीनार कहीं से टूटा हुआ भी नहीं था। उसकी दीवारें ऊपर तक सलामत थी। मीनार का ऊपर वाला हिस्सा इस तरह था जैसे कोई हैट औंधा रखा हो। वो दोबारा कुंदन के करीब आ गई, जो उसी जगह पर खड़ी थी। उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तुम मुझे इन खंडरों में क्यों लेकर आई हो? जरियाब ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। हवेली से तुम्हारे फरार के बाद गोपांग और खामिस चैन से नहीं बैठेंगे। वो तुम्हारी तलाश में आसपास की बस्तियों को भी कंगाल कर रख देंगे और इस तरफ भी जरूर आएंगे। ये खंडरात हमारे लिए महफूज तरीन पनाका साबित होंगे। यहां वो हमारा सुराग नहीं लगा सकेंगे। कुंदन ने जवाब दिया। महफूज पनाका? जरियाब ने ताज्जुब का इजहार करते हुए चारों तरफ देखा। तुम समझती हो कि ये खंडरात हमें पनाह दे सकेंगे? हाँ, कुंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जिस तरह सदियों पहले ये इमारत अपने मकीनों के लिए महफूज तरीन पनाह का थी, इसी तरह आज ये खंडर भी हमें पनाह देंगे। जरियाब बदस्तूर उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। कुंदन ने एक बार फिर मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर एक शिकस्ता दीवार के करीब बैठ गई। दीवार में जमीन की सतह से तकरीबन 1 फुट ऊपर एक पत्थर निकला हुआ था, जिससे दीवार में एक खला सा बन गया था। कुंदन ने उस खला में हाथ डालकर कोई चीज निकाली जिसे जरियाब न देख सकी थी। वो सीधी होकर दाएं तरफ मुड़ना ही चाहती थी कि बहुत दूर धूल के बादल उठते देखकर वो चौंक गई। शायद वो लोग तुम्हारी तलाश में इसी तरफ आ रहे हैं। आओ मेरे साथ, जल्दी करो, कुंदन ने कहा और वो तेज कदम उठाती हुई एक तरफ चलने लगी। जरियाब भी तेज तेज कदम उठाती हुई चल रही थी। पत्थरों से ठोकर खाकर वो कई मर्तबा गिरते गिरते बची थी। कुंदन एक जगह रुक गई। वहां दीवार के नीचे एक खड्डा सा नजर आ रहा था। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी जानवर ने पंजों से जमीन खोदकर उस शिकस्ता दीवार के नीचे अपना ठिकाना बना रखा हो। वो खड्डा इतना कुशादा था कि एक आदमी सीने के बल रेंग कर आसानी से उसमें दाखिल हो सकता था। कुंदन बड़ी फुर्ती से जमीन पर बैठ गई। उसने अपने पैर अंदर दाखिल किए और फिर पुश्त के बल रेंगती हुई उस खड्ड में दाखिल हो गई। जल्दी करो जरियाब, अगर उन लोगों ने हमारी झलक भी देख ली तो पूरे खड्डे को खोद कर रख देंगे। जरियाब ने गर्दन घुमाकर दाएं तरफ देखा। बहुत दूर गर्दो गुबार का बादल सा उठता हुआ नजर आ रहा था। वो यकीनन 1 या 2 घुड़सवार थे जो इसी तरफ आ रहे थे। फासला बहुत ज्यादा होने की वजह से वो उन घुड़सवारों को नहीं देख सकी थी, लेकिन उड़ती हुई धूल से जाहिर हो रहा था कि उनका रुख इसी तरफ था। कुंदन ने उसे दोबारा अंदर आने के लिए कहा। जरियाब का दिल चाहा कि यहां से भाग जाए, लेकिन अगर वो लोग इस तरफ आ रहे थे तो वो जल्द ही उसे पकड़ लेंगे और फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो हवेली से निकलना नहीं चाहती थी, मगर रज़मक और उसके साथी उसे बेहोश करके उठा लाए थे। खामिस उसके हाथों पिटा भी था। वो उसे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब उसकी भलाई इसी में थी कि वो कुंदन के कहने पर अमल करे। क्या सोच रही हो जरियाब, जल्दी करो, कुंदन की आवाज फिर सुनाई दी। जरियाब जैसे होश में आ गई। कुंदन के मशवरे पर अमल करने में ही भलाई थी। उस वक्त इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। उसने एक बार फिर उड़ती हुई धूल की तरफ देखा और फिर जमीन पर बैठ गई। फिर जिस तरह कुंदन खड्ड में दाखिल हुई थी
उसी तरह जरियाब भी अंदर चली गई। ये एक तंग सी सुरंग थी जिसमें सिर्फ रेंग कर ही आगे बढ़ा जा सकता था। कुंदन ने टॉर्च रोशन कर ली थी। जरियाब को समझने में देर नहीं लगी कि कुंदन ने मीनार के करीब दीवार की खला से जो चीज उठाई थी वो टॉर्च ही थी। 3-4 गज के बाद ये सुरंग दाएं तरफ मुड़ गई और फिर बाएं तरफ। वो दोनों आगे पीछे रेंगती हुई आगे बढ़ती रहीं। तकरीबन 15 गज का मजीद फासला तय करने के बाद जरियाब अचानक ही कुशादा जगह पर निकल आई। उसने मुड़कर देखा। वो तंग सी सुरंग एक खिड़की की तरह लग रही थी। उसके दाएं तरफ एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। कुंदन ने टॉर्च जमीन पर रख दी। इस पत्थर को धकेलने में मेरी मदद करो, वो जरियाब की तरफ देखते हुए बोली। जरियाब उसके करीब पहुंच गई और दोनों पत्थर को धकेलने लगीं। पत्थर सरकता हुआ सुरंग की खिड़की नुमा तहाने पर इस तरह फिट हो गया जैसे उसी जगह से निकाला गया हो। कुंदन ने टॉर्च उठा ली और वो दोनों कुशादा सुरंग में चलने लगी। बल खाती हुई सुरंग एक जगह खत्म हो गई। आगे एक बहुत बड़ा हॉल था। पत्थर के बड़े बड़े सुतूनों ने छत को सहारा दे रखा था। उस हॉल के दूसरी तरफ एक कुशादा राहदारी में मशालें चल रही थीं। हॉल अगरचे पूरी तरह रोशन नहीं था, लेकिन तारीकी बहरहाल कम हो गई थी। जरियाब का दिल होले होले कांप रहा था। वो अजीब तागूनी चक्कर में फंस कर रह गई थी। वो अपने खानदान की तारीख पर रिसर्च करने निकली थी और पुरस्कार हालात का शिकार हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सूरत हाल से निजात कैसे हासिल करेगी। राहदारी के इख्तिताम पर एक और छोटा सा हॉल था जिसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। उस हॉल में भी कई मशालें रोशन थी और रोशनी बहरहाल इतनी मुनासिब थी कि चंद कदम दूर खड़े हुए शख्स का चेहरा बखूबी देखा जा सकता था। एक बात जरियाब ने खास तौर से नोट की थी कि इन सुरंगों या तहखानों में किसी किस्म की घुटन नहीं थी। लगता था जैसे ताज़ा हवा की आमद और रफ्त का कोई मौसर निज़ाम मौजूद है। उस हॉल के ऐन वस्त में एक बहुत बड़े सुतून ने छत को सहारा दे रखा था। हॉल में मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे पत्थर भी पड़े थे जिन्हें सीटों के तौर पर तराशा गया था। जरियाब वहां खड़ी हैरत से इधर उधर देख रही थी। फिर दफातन दाएं तरफ एक कमरे का दरवाजा खुला और रस्मक कमरे से निकलकर हॉल में आ गया। रस्मक को देखकर जरियाब उछल पड़ी। वो तो घोड़े पर सवार होकर टीले के दाएं तरफ चला गया था। वो उनसे पहले यहां कैसे पहुंच गया? और फिर वो घोड़ा? जरियाब ये सब कुछ सोच रही थी कि कुंदन की आवाज सुनकर चौंक गई। तुम शायद ये सोच रही हो कि रस्मक हमसे पहले यहां कैसे पहुंच गया, कुंदन कह रही थी। खंडर के नीचे इस तहखाने में आने का एक और रास्ता भी है। यह तहखाना दरअसल रस्मक ही की दरियाफ्त है। इस राज से सिर्फ हम चंद लोग वाकिफ हैं कि इन खंडरों के नीचे कोई तहखाना भी है। महकमा आसार कदीमा को शायद इन कदीम खंडरों से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी गई। हो सकता है कभी इस तरफ तवज्जो दी जाए और तहकीकात के दौरान अगर कभी खुदाई की गई तो शायद इस तहखाने का राज खुल जाए। तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? जरियाब ने कुंदन के चेहरे पर नजरें जमा दी। ये सवाल तुम कितनी मर्तबा पूछोगी? कुंदन मुस्कुराती। वो मजीद कुछ कहना ही चाहती थी कि एक और कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की नपे तुले कदम उठाती हुई उनकी तरफ आने लगी। जरियाब अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी चाल से यूं लगता था जैसे कदम जमीन पर रखने के बजाय हवा में तैर रही हो। जरियाब के दिमाग में तेज सनसनाहट होने लगी। लड़की की उम्र 16-17 साल के लगभग रही होगी। बेहद हसीन थी। जरियाब को दिल ही दिल में एतराफ करना पड़ा कि ऐसी हसीन लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। उसके अहमरी होंठों पर मलकूती मुस्कुराहट थी। ये खुशनुमा है। कुंदन ने गोया उसका तारुफ कराया। रस्मक की छोटी बहन। ये दोनों बड़ा चाहते हैं एक दूसरे को। यूं कह लो ये एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं। और हाँ, खुशनुमा वो लड़की की तरफ घूम गई। ये जरियाब है। इसका गायबाना तारुफ मैं तुमसे पहले भी करा चुकी हूं। खुशनुमा ने आगे बढ़कर जरियाब की तरफ हाथ बढ़ा दिया। जरियाब एक लम्हे को हिचकिचाई, फिर उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। खुशनुमा का हाथ रुई के गाले की तरह नर्म था। जरियाब से हाथ मिलाते हुए उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। इसके साथ ही उसके दाएं रुखसार में एक छोटा सा गढ़ा पड़ गया था। वो वाकई खुशनुमा थी। रुखसार पर गढ़े ने उसके हुस्न में और इजाफा कर दिया था। आइए, खुशनुमा ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। रस्मक भैया ने बताया था कि आप लोग आ रहे हैं, तो मैंने नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया था। चंद मिनट लगेंगे। कुंदन जरियाब को लेकर एक कमरे में आ गई। कमरे के वस्त में मेज की तरह का एक बहुत बड़ा मुस्ततील पत्थर पड़ा हुआ था। उसकी ऊपर की सतह बेहद चिकनी थी।
उसके अतराफ में सीटों की तरह तराशे हुए पत्थर रखे हुए थे। पत्थर की उस मेज के गिर्द बैक वक्त 10 आदमी बैठ सकते थे, 4 एक तरफ, 4 दूसरी तरफ, और एक एक चौड़ाई के रुख पर आमने सामने। ज़रियाब को समझने में देर नहीं लगी कि सदियों पहले भी ये पत्थर डाइनिंग टेबल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा था। ज़रियाब और कुंदन मेज की लंबाई के रुख पर आमने सामने बैठ गईं। कुछ देर बाद रस्मक ने मेज पर पानी का जग, गिलास और प्लेटें सजा दी। ज़रियाब का गला खुश्क हो रहा था और गिलास को होंठों से लगाकर घटाघट पानी पीने लगी। पानी पीते हुए ज़रियाब की नजरें कुंदन की तरफ गईं। ज़रियाब का गिलास भी होंठों से लगा हुआ था, लेकिन अब वो पानी नहीं पी रही थी। वो गिलास हटाए बगैर अजीब सी नजरों से कुंदन की तरफ देख रही थी। उसे अपने दिमाग में चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। रूहों को खाने पीने की एहतियाज नहीं होती। कुंदन ने गिलास होंठों से हटाकर मेज पर रख दिया। ज़रियाब ने गिलास की तरफ देखा, वो खाली था। उसने भी गिलास मेज पर रख दिया और कुंदन की तरफ देखने लगी। कुंदन के होंठों पर मायने खेस मुस्कुराहट थी। ज़रियाब सोच रही थी कि क्या कुंदन वाकई जिंदा और गोश पोश की औरत थी, लेकिन जागीरदार नमरान ने बताया था कि उसकी बेटी कुंदन 10 साल पहले मर गई थी। मरे हुए इंसान जिंदा नहीं हो सकते। अगर ये कुंदन की रूह नहीं थी तो कौन थी? उसकी जुड़वा बहन या कोई और हमशक्ल? लेकिन वो कुंदन की बहन नहीं हो सकती थी। नमरान ने बताया था कि कुंदन उसकी अकलौती बेटी थी। ये कोई और थी जो उसकी हमशक्ल थी। अच्छा लो, मेरा हाथ थाम कर देखो, तुम्हारे सारे खदशात दूर हो जाएंगे। कुंदन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ सीधा किया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लगता था जैसे उसने ज़रियाब के ख्यालात पढ़ लिए हों। ज़रियाब मखरूती उंगलियों वाले उस खूबसूरत हाथ की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। फिर वो अपना सीधा हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने लगी। उसके दिल की धड़कन फिर तेज हो गई थी। अंदेशा हुआ कि अगर उसने कुंदन के हाथ का लम्स महसूस न किया तो फिर क्या होगा। कुंदन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ कुछ और आगे बढ़ा दिया। ज़रियाब की उंगलियां कांप रही थीं। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा और फिर पहले उसने कुंदन की एक उंगली को छुआ। उसने लम्स महसूस किया था और फिर उसने कुंदन का पूरा हाथ थाम लिया। इसके साथ ही उसके मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया था। शुक्र है, तुम्हारी एक गलत फहमी तो दूर हुई, कुंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी वक्त खुशनुमा और रज़मक नाश्ता लेकर आ गए। वो खुद भी आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए। नाश्ता देखकर ज़रियाब की भूख चमक उठी थी। नाश्ते के दौरान ज्यादातर खामोशी ही रही। नाश्ते के बाद खुशनुमा और रज़मक बर्तन उठाकर ले गए तो कुंदन भी ज़रियाब को इशारा करते हुए उठ गई। वो दोनों एक और कमरे में आ गईं। कमरे के फर्श पर सुर्ख रंग की तरी बिछी हुई थी। एक दीवार के साथ 2-3 फर्शी कुशन भी पड़े हुए थे। कुंदन एक कुशन से टेक लगाकर बैठ गई। बैठो, उसने ज़रियाब को इशारा किया। 10 साल पहले क्या हुआ था? ज़रियाब ने बैठते हुए कहा। तुमने फसील से छलांग लगा दी थी। इतनी बुलंदी से छलांग लगाने के बाद किसी का जिंदा बचना मुमकिन नहीं है। मुझे मुर्दा तसव्वुर कर लिया गया था, कुंदन ने कहा। अब भी बहुत से लोग यही समझते हैं कि मैं मर गई थी और मेरी लाश जंगली जानवर घसीट कर कहीं ले गए थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मगर तुम्हें किसने बताया? जागीरदार नमरान ने, ज़रियाब ने जवाब दिया। बाबा ने? कुंदन की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। तुम मिली थी बाबा से? कैसे हैं वो? चंद रोज पहले वो रात के पिछले पहर मेरे कमरे में आ गए थे, ज़रियाब ने जवाब दिया। उस कमरे में कोई खुफिया रास्ता है। तफसील से कोई बात नहीं हो सकी थी। खामिस को पता चल गया था कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है। उन्हें बड़ी उजलत में वहां से जाना पड़ा। वो रखेल शाह की कैद में है और गोपांग और खामिस उनकी निगरानी के लिए मौजूद रहते हैं। बाबा कैसे हैं? कुंदन ने फिर अपना सवाल दोहराया। बीमार हैं, ज़रियाब ने जवाब दिया। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर उन्हें इस कैद से निजात दिलाती जाए तो उनकी बीमारी चंद ही रोज में दूर हो जाएगी। मैं उनकी तलाश में हूं, कुंदन ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मुझे उन तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा। उस हवेली के नीचे तुम सुरंगों का जाल देख चुकी हो। बड़े खुफिया और पुरस्कार रास्ते हैं। कुछ रास्ते मस्मार हो चुके हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि बाबा को कहां रखा गया है। काश मैं उन तक पहुंच सकूं। तुम्हारे बाबा के कहने के मुताबिक हवेली से निकलने के लिए 4 खुफिया रास्ते हैं, जिनमें से एक मस्मार हो चुका है। शायद उसकी सुरंग बैठ गई है। एक रास्ता उसी कमरे में है जहां मुझे कैद रखा गया था, और एक किचन में किसी जगह।
मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे बाबा 1-2 दिन बाद फिर मुझसे रब्ता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि गोपांग वगैरह को पता चल गया होगा। हो सकता है उनकी निगरानी सख्त कर दी गई हो, लेकिन तुम लोगों ने मुझे वहां से क्यों निकाल लिया? तुम्हारी जान खतरे में थी, कुंदन ने जवाब दिया। रकील शाह का ख्याल है कि तुम बाबा की कोई करीबी रिश्तेदार हो और बाबा ने तुम्हें जागीर की विरासत के सिलसिले में बुलाया है। रकील शाह तुम्हें कत्ल करवा देना चाहता है। अगर तुम 1-2 दिन और वहां रह जाती तो वो लोग तुम्हें कत्ल करके लाश किसी जेर जमीन सुरंग में फेंक देते और दुनिया वालों को पता भी ना चलता। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? जरिया अपने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। दरवेशपुर में रकील शाह के दफ्तर में एक हमदर्द मौजूद है। ये इत्तला मुझे उसी ने दी थी, कुंदन ने जवाब दिया। तुम वाकई कुंदन हो या उसकी कोई हमशक्ल? जरिया ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। कुंदन ने एक हल्का सा कहका लगाया। मैं कुंदन हूं। 10 साल पहले रकील शाह ने जागीर पर कब्जा जमाने के लिए एक खौफनाक मंसूबा बनाया था। उसका एक ही तरीका था कि मुझसे शादी करे। मैं बाबा की अकलौती औलाद हूं, कोई बहन भाई नहीं, कानूनी तौर पर जागीर की वारिस हूं। मुझसे शादी करके रकील शाह जागीर पर काबिज हो सकता था। उसने बाबा से मेरे रिश्ते की बात की, मगर बाबा ने साफ इनकार कर दिया। बाबा से मायूस होकर उसने मुझ पर डोरे डालना शुरू कर दिए। एक रोज मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उस वक्त तो रकील शाह ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वो इंतकाम के लिए मौके की तलाश में था। उन दिनों हवेली में कुछ चहल पहल हुआ करती थी। खासे नौकर चाकर थे। शहर से मेहमानों की आमद और रफ्त भी रहती थी। जागीर का सारा हिसाब किताब रकील शाह के हाथ में था। बाबा तो बस घूम फिर कर ही वक्त गुजार दिया करते थे। एक रोज इत्तेफाक से बाबा को पता चल गया कि रकील शाह लाखों रुपए कबन कर चुका है। बाबा नर्म मिजाज हैं। उन्होंने रकील शाह को सिर्फ वार्निंग देने पर ही इक्तिफा किया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो कोई सख्त कदम उठाते तो आज ये सूरत हाल ना होती। रकील शाह बड़ा कीना परवर आदमी है। वो अंदर ही अंदर इंतकाम की आग में सुलगता रहा। कुंदन चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। बाबा शहर गए हुए थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि खटके की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। रकील शाह को अपने कमरे में देखकर मैं बदहवास सी हो गई। रकील शाह ने मुझ पर दस्तराजी की कोशिश की, मगर मैं भागकर कमरे से बाहर आ गई और दौड़ती हुई हवेली की फसील पर आ गई। हवेली के बाज नौकर मेरी चीखों की आवाज सुनकर जाग गए। उस रोज शहर से कुछ मेहमान भी आए हुए थे, वो भी जाग गए थे। रकील शाह मेरे पीछे फसील पर पहुंच गया। उस पर इंतकाम का भूत सवार था, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचता, मैंने फसील से छलांग लगा दी। मैं दरख्तों की शाखों में उलझती हुई नीचे गिरी। मरने से तो बच गई, लेकिन कुछ चोटें आई थीं। मैं खौफ और दहशत से बेहोश हो गई। होश आने पर मैंने अपने आप को हवेली से कई मील दूर किसानों की छोटी सी बस्ती में एक मकान में पाया। दरअसल रज़मक का बाप मेरे छलांग लगाने के थोड़ी देर बाद दौड़ता हुआ हवेली से बाहर आ गया था। उसने मुझे तलाश कर लिया और बेहोशी की हालत में उठाकर उस बस्ती में ले आया। बात की बातें मुझे वक्तन फवक्तन रज़मक के वालिद तमरेज से मालूम होती रहीं। बाबा को जब सूरत हाल का पता चला तो उन्होंने रकील शाह को जागीर की मुलाजमत से निकाल दिया। रकील शाह बज़ाहिर हवेली से चला गया था, लेकिन गोपांग और खामिस जैसे उसके गुरके हवेली में मौजूद थे। वो रकील शाह को एक एक लम्हे की सूरत हाल से बाखबर रखे हुए थे। बाबा और हवेली के दूसरे लोग यही समझे कि मैं फसील से छलांग लगाने के बाद हलाक हो गई थी और जंगली जानवर मेरी लाश को घसीट कर ले गए थे। तमरेज ने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया कि मैं जिंदा हूं। उसने बाबा को भी इस राज से आगाह नहीं किया। बाबा उन दिनों रकील शाह की वजह से शदीद ज़हनी दबाव में थे। रकील शाह ने गोपांग और खामिस के जरिए बाबा को अपनी साजिशों के जाल में फंसा रखा था। हवेली में चंद मुलाजिम बाबा के वफादार भी थे। रकील शाह अपने गुरकों के जरिए एक एक करके उन्हें खत्म करवाता रहा। तमरेज अपने बेटे रज़मक और बेटी खुशनुमा को हवेली से निकालकर किसानों की उस बस्ती में मुंतकिल हो गया था जहां मैं थी। बाबा अमली तौर पर उनके कैदी बनकर रह गए थे। वो चारों तरफ से साजिशों में घिरे हुए थे। वो जहां भी जाते गोपांग और खामिस साई की तरह उनके साथ लगे रहते। वो बाबा को किसी से तन्हाई में मिलने या बात करने का मौका नहीं देते। हवेली में तमरेज ऐसा वाहिद आदमी रह गया था जो बाबा का वफादार था, लेकिन वो भी बेबस होकर रह गया था। और फिर एक रोज रकील शाह ने उसे भी कत्ल करवा दिया। रज़मक मुझे और अपनी छोटी बहन खुशनुमा को लेकर किसानों की उस बस्ती से निकल गया। खुशनुमा उस वक्त 6-7 साल की थी। रकील शाह को मेरे बारे में तो इल्म नहीं था, लेकिन उसके आदमी रज़मक की तलाश में थे।
रज़मक उस वक्त खबरू जवान था, लेकिन वो अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो मुझे और खुशनुमा को इन इंसानी भेड़ियों से बचाना चाहता था। वो मुझे और खुशनुमा को लेकर इस मुल्क से ही निकल गया। रज़मक ने वफादारी का हक अदा कर दिया। इन 10 बरसों के दौरान उसने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की, बड़े दुख उठाए, लेकिन मुझे और खुशनुमा को जरा भी तकलीफ नहीं होने दी। हम दोनों ने तालीम पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी। रज़मक ने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। उसने हम दोनों को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि हमारे बाप नहीं हैं। कुछ अरसे पहले रज़मक हमें लेकर वतन वापस आ गया। हमें उसने कोलाची में छोड़ा और खुद सूरत हाल मालूम करने के लिए दरवेशपुर आ गया। दफ्तर में एक ऐसे आदमी से राब्ता कायम हो गया जो अब भी बाबा का वफादार था। उसने बताया कि बाबा सख्त बीमार हैं और रखेल शाह की कैद में हैं। रखेल शाह ने बाबा को हवेली में कैद करके जागीर के निज़ाम पर कब्जा कर लिया था। उसने हवेली के तमाम नौकरों को निकाल दिया। जिन पर किसी किस्म का शुबा था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। हवेली पर कब्जा करने के लिए उसने बड़े बड़े लंबे चौड़े मंसूबे बना रखे हैं। रज़मक ने इन खंडरों में यह तहखाना दरियाफ्त कर लिया। यहां से तकरीबन 1 मील दूर किसानों की एक छोटी सी बस्ती है, लेकिन हमने कभी उस बस्ती का रुख नहीं किया। रज़मक ने ज़रूरत का हर सामान यहां जमा कर रखा है। हम कभी कभी शहर से आकर यहां पड़ाव डाल लेते हैं और यहीं से एक तवील फासला तय करके मैं हवेली में दाखिल होकर बाबा को तलाश करने की कोशिश करती रहती हूँ। मुझे हवेली के तमाम खुफिया रास्तों का पूरी तरह इल्म नहीं है। जो रास्ते मालूम हैं, उनके जरिए बाबा को तलाश करने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। फिर दरवेशपुर के दफ्तर में बाबा के वफादार उसी आदमी से तुम्हारे बारे में पता चला। उन्हें यह भी पता चल गया था कि बाबा ने तुम्हारे नाम खत डॉक्टर के जरिए पोस्ट करवाया था। उन्होंने डॉक्टर को भी दरवेशपुर में इसी तरह कत्ल करवा दिया कि उसकी मौत को एक हादसा समझा गया। हमारे आदमी के बयान के मुताबिक रखेल शाह को शुबा है कि तुम बाबा की कोई अजीज हो और बाबा ने तुम्हें जागीर की विरासत के लिए बुलाया है। कल ही इत्तला मिली थी कि रखेल शाह ने तुम्हें भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया है। वो 1-2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें कत्ल कर देते, इसलिए मैंने तुम्हें हवेली से निकालने का फैसला कर लिया था। रज़मक और सदू तुम्हें वहां से निकालने के लिए गए थे। सदू बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। बहुत अच्छा आदमी था वो। मुझे उसकी मौत का बहुत अफसोस हुआ है। क्या तुम लोगों ने मुझे हवेली से निकालकर गलती नहीं की? जरियाब ने कुंदन के खामोश होने पर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम्हारे बाबा से मेरी एक मुलाकात हो चुकी थी। मैं हवेली में ही रहकर उनकी मदद कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा था। कुंदन ने जवाब दिया, हम यहां रहकर भी बाबा को तलाश कर सकते हैं। वैसे बाबा से तुमने किस कमरे में मुलाकात की थी? जरियाब चंद लम्हे सोचती रही, फिर उसे समझाने लगी कि वो कौन सा कमरा था जहां नमरान ने उससे मुलाकात की थी। ठीक है, कुंदन ने कहा, 1-2 दिन तक हवेली का रुख करना खतरे से खाली नहीं होगा। गोपांग और खामिस की भाग दौड़ खत्म हो जाए तो हम हवेली में दाखिल होकर बाबा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे बाबा ने बताया था कि उनके पास इस खानदान के बारे में कुछ कदीम दस्तावेजात मौजूद हैं। क्या तुम इस सिलसिले में कुछ जानती हो? जरियाब ने पूछा। बाबा भी चाहते थे कि इस खानदान की तारीख मुरतब की जाए। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ अरसे काम भी किया था, लेकिन फिर रखेल शाह की साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया और वो काम अधूरा रह गया। उनके पास यकीनन ऐसी दस्तावेजात होंगी जो वो तुम्हारे हवाले करना चाहते हैं, कुंदन ने जवाब दिया। जरियाब कुछ कहना ही चाहती थी कि रज़मक कमरे में दाखिल हुआ और कुंदन की तरफ देखते हुए बोला, वो लोग खंडर में पहुंच चुके हैं। यहां आने से पहले वो किसानों की बस्ती की तरफ गए थे। तुम भी आओ मेरे साथ। कुंदन जरियाब को इशारा करते हुए उठ गई। वो कमरे से निकलकर बड़े हॉल में से होते हुए सुरंगों में एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक तंग सी जगह पर ऊपर की तरफ गोल सीढ़ियां थीं। यूं लगता था जैसे वो किसी गहरे कुएं में हों। रज़मक ने टॉर्च की रोशनी से इशारा किया। कुंदन सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके पीछे जरियाब थी और सबसे आखिर में रज़मक, जो हाथ एक तरफ को निकाले उन्हें टॉर्च से रोशनी दिखा रहा था। सीढ़ियां दीवार के साथ साथ गोलाई में बनी हुई थीं। आखिरी सीढ़ी पर जरियाब कुंदन के करीब रुक गई। ऊपर आते हुए जरियाब ने एक बात नोट की थी कि सीढ़ियों के साथ कहीं कहीं दीवार में सुराख थे। जो सुराख सूरज के रुख पर थे, वहां से धूप की किरणें भी रोशन लकीर की तरह अंदर आ रही थीं। रज़मक ने मुड़कर होंठों पर उंगली रखी और फिर एक सुराख की तरफ इशारा किया। जरियाब उस सुराख से बाहर झांकने लगी।
इसके साथ ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। तकरीबन 20 गज दूर खंडरों में गोपांग घोड़े पर बैठा इधर उधर देख रहा था। उसने एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में शॉटगन संभाल रखी थी। आसपास का मंजर देखकर ज़रियाब को यह समझने में देर नहीं लगी कि जिस कुएं के अंदर गोल सीढ़ियों पर वो खड़ी थी वो दरअसल वही मीनार था जिसे वो बाहर से भी देख चुकी थी, और बाहर से उसे मीनार में दाखिले का कोई रास्ता नजर नहीं आया था। ये एक तरह का वॉच टावर था। जिस जमाने में ये इमारत आबाद होगी उस वक्त इस वॉच टावर के जरिए आसपास निगाह रखी जाती होगी। ज़रियाब ने मुड़कर कुंदन की तरफ देखा। वो एक और सुराख से झांक रही थी। घोड़े के कदमों की आवाजें सुनकर ज़रियाब ने फिर सुराख से आंख लगा दी। खामिस एक सियाह घोड़े पर सवार एक शिकस्ता दीवार की आड़ से निकलकर सामने आ रहा था। उसके भी एक हाथ में शॉटगन थी। सबसे खौफनाक मंजर यह था कि घोड़े के पीछे तकरीबन 10 कदम के फासले पर एक उधेड़ उम्र आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उसके दोनों हाथ रस्सी में बंधे हुए थे और रस्सी का दूसरा सिरा घोड़े की ज़ैन से बंधा हुआ था। वो कोई किसान था। आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे। उम्र 45 के लगभग रही होगी। मैली सी शलवार और फटी हुई कमीज। उसकी पेशानी और चेहरा खून आलूद था। दोनों कोहनियां भी खून आलूदा थीं और दोनों घुटनों के करीब शलवार पर भी खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। खामिस गोपांग के करीब आकर रुक गया। वो दोनों कुछ देर इधर उधर देखते रहे। फिर खामिस ने शॉटगन का रुख ऊपर की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। वीराना फायर की आवाज से गूंज उठा। वीराने में देर तक बाज गश्त सुनाई देती रही। गोपांग ने खामिस को इशारा किया और घोड़े की लगाम को हल्का सा झटका देकर ढीला छोड़ दिया। घोड़ा इशारा पाकर हरकत में आ गया। घोड़े के पीछे बंधा हुआ आदमी उठकर घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगा। चंद मिनट के बाद शिकस्ता दीवारों के पीछे निगाहों से ओझल हो गए। ये कौन था? ज़रियाब ने कुंदन की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में वीरानी सी झलक आई थी। यहां से तकरीबन 1 मील की दूरी पर वाक़े किसानों की बस्ती का चौधरी हुर्मत अली। कुंदन के बजाय रस्मक ने जवाब दिया। ये लोग इंसान नहीं, वाकई दरिंदे हैं। ज़रियाब बुड़बुड़ाई। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या वो उस तहखाने के बारे में जानता है? नहीं, इस मर्तबा भी रज़मक ने ही जवाब दिया। बस्ती के किसी बासी को इस तहखाने का इल्म नहीं है, लेकिन वो चौधरी हुर्मत को घोड़े के पीछे बांध कर ले गए हैं। वो हवेली में ले जाकर उस पर मजीद जुल्म करेंगे, लेकिन ये जुल्म उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उन्हें खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। ये लोग तुम्हारी तलाश में जागीर का कोना कोना छान मारेंगे। अब तुम उनके लिए पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई हो सकता है ये दरवेशपुर से कुछ और आदमी मंगवा लें। कुंदन ने ज़रियाब की तरफ देखते हुए कहा, तुम उनके बहुत से राज जान चुकी हो और गालिबन पहली हस्ती हो जो हवेली से निकलने में कामयाब हुई हो। तुम्हारी जिंदगी उनके लिए मौत है। वो तुम्हें हर कीमत पर तलाश करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि उन्हें मेरी तलाश में ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ज़रियाब ने कहा। क्या मतलब? कुंदन ने उसे घूरा। वो उसके लहजे से चौंक गई थी। मैं आज रात हवेली में वापस जाऊंगी। ज़रियाब ने ठोस लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कुंदन अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। यानी सब कुछ जानते हुए भी तुम मौत के मुंह में छलांग लगाना चाहती हो? तुम शायद भूल रही हो कुंदन कि तुम्हारा बाप भी हवेली में उन्हीं दरिंदों के रहमो करम पर है। ज़रियाब ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। कुंदन चंद लम्हे अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम हुर्मत चौधरी की हालत देखकर जज्बाती हो रही हो। चलो आराम से बैठकर बात करेंगे। वो लोग मीनार से उतरकर दोबारा उसी कमरे में आ गए। थोड़ी देर बाद खुशनुमा भी आ गई। कुंदन और रज़मक ज़रियाब को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इन हालात में हवेली का रुख करना खुदकुशी के मुतरातिफ होगा, लेकिन ज़रियाब का मौक़िफ़ यह था कि हवेली में दाखिल होने का यही बेहतरीन मौका है। खामिस और गोपांग अकेले होंगे। अगर उनसे सामना हो गया तो उन दोनों से निमटा जा सकता है, लेकिन अगर उन्होंने दरवेशपुर से मजीद आदमी बुलवा लिए तो फिर हवेली का रुख करना खतरनाक होगा। वो देर तक बहस करते रहे। बिलाखिर जब ज़रियाब ने यह धमकी दी कि अगर उनमें से कोई जाने को तैयार ना हुआ तो वो अकेली भी चली जाएगी, फिर रज़मक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी पीछे नहीं रह सकती, कुंदन ने कहा।
اور بالآخر یہ طے ہو گیا کہ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ تینوں یہاں سے نکل چلیں گے اور خوشنما کو بستی میں چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا بستی کے لوگ قابل اعتماد ہیں؟ زریاب نے پوچھا۔ وہ آقا کے وفادار ہیں، رزمق نے جواب دیا۔ جاگیر کا ہر کسان جانتا ہے کہ رکھیل شاہ جاگیر پر قبضہ کرنے کے لیے آقا کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ وہ بہت ظالم اور سفاک آدمی ہے، ان سے اناج کا ایک ایک دانہ چھین کر لے جاتا ہے۔ سال بھر چل چلاتی دھوپ میں محنت و مشقت کرنے والے یہ لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ یہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، لیکن انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کا آقا زندہ ہے، وہ ایک امید پر جی رہے ہیں۔ وہ اپنی جان دے دیں گے مگر آقا زادی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ لیکن وہ بستی کے چودھری ہی کو کیوں پکڑ کر لے گئے ہیں؟ کسی اور کو بھی پکڑ سکتے تھے، زریاب نے کہا۔ غلطی میری تھی، رزمق نے کہا۔ تم نے شاید اس گھوڑے پر توجہ نہیں دی تھی جس پر خامس سوار تھا۔ یہ وہی گھوڑا تھا جو ہم نے خامس کی پٹائی کے بعد حاصل کیا تھا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے وہ گھوڑا حرمت چودھری کے حوالے کر دیا تھا۔ گوپانگ اور خامس پہلے بستی میں گئے تھے۔ چودھری کے پاس یہ گھوڑا دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ انہوں نے بستی کے ایک ایک گھر کی تلاشی لی ہوگی اور پھر حرمت کو پکڑ کر اس طرف آ گئے تھے۔ اگر چودھری زندہ حویلی تک پہنچ گیا تو وہ اس سے ہمارے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن زریاب اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی، تم لوگوں نے بتایا تھا کہ بستی یہاں سے تقریباً 1 میل دور ہے، لیکن تم ہمارے آنے سے پہلے اس تہخانے میں پہنچ چکے تھے۔ کیا 1 میل کا فاصلہ سیکنڈوں میں طے ہو سکتا ہے؟ میں اس ٹیلے کے دوسری طرف پہنچا ہی تھا کہ مجھے کھیتوں میں حرمت چودھری مل گیا۔ میں نے گھوڑا اس کے حوالے کر دیا اور خود اس طرف آ گیا۔ میں نے اسے ہدایت کر دی تھی کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے گھوڑے کو کہیں اور بھجوا دے، لیکن شاید اسے موقع نہیں مل سکا ہوگا اور اس طرح وہ ان کے قابو میں آ گیا۔ رزمق نے کہا، کیا تمہارے خیال میں خامس یہاں تک دوڑتا ہوا آیا ہوگا جبکہ گوپانگ اپنے گھوڑے پر سوار تھا؟ زریاب نے اسے گھورا۔ خامس واقعی کوئی بدروح ہے، رزمق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ فاصلے اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سے زیادہ تیز رفتاری سے دوڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ طے ہوا کہ ہم سورج غروب ہوتے ہی یہاں سے نکل چلیں گے، زریاب نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، رزمق نے جواب دیا۔ اس کے بعد وہ مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ اس تہخانے میں زریاب کو وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن رزمق گزرنے والے ایک ایک منٹ سے واقف تھا۔ سورج غروب ہونے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے وہ خوشنما کو لے کر چلا گیا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد کندن بھی زریاب کو لے کر ایک اور راستے سے باہر آ گئی۔ اس طرف ٹیلے کے سامنے نشیب میں لہلاتے ہوئے کھیت تھے۔ وہ ٹیلے سے اتر کر کھیتوں کے کنارے پر آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد رزمق 3 گھوڑے لے کر وہاں پہنچ گیا۔ تم گھڑ سواری کر سکتی ہو؟ رزمق نے زریاب سے پوچھا۔ ہاں، شوقیہ طور پر گھڑ سواری سیکھی تھی، زریاب نے جواب دیا۔ تو لو سنبھالو یہ گھوڑا۔ رزمق نے اپنے گھوڑے سے اتر کر ایک سفید گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ گھوڑے پر زین کسی ہوئی تھی، وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ کندن اور رزمق بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور وہ تینوں حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ زریاب سوچ رہی تھی کہ وہ واقعی جان بوجھ کر موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہی تھی۔ حویلی کے قریب پہنچنے تک انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ انہوں نے گھوڑے درختوں سے باندھ دیے اور تاریکی ہی میں حویلی کی طرف چلنے لگے۔ خفیہ راستے کے قریب پہنچ کر رزمق نے اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے میں سے ایک ٹارچ نکال کر ان کی طرف بڑھا دی۔ ایک ٹارچ ان کے پاس ہی تھی۔ پتھر ہٹا کر خفیہ راستے سے اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی اپنی ٹارچ روشن کر لی اور زیر زمین سرنگ میں چلنے لگے۔ کندن سب سے آگے تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک جگہ سرنگ سے باہر آ گئے۔ سرنگ سے باہر آنے سے پہلے انہوں نے اپنی اپنی ٹارچیں بجھا دی تھیں۔ رزمق کے دائیں ہاتھ میں ایک چاقو نظر آ رہا تھا۔ حویلی پر سناٹا تھا۔ تاریکی اور سناٹے میں ہوا کی سائیں سائیں دل پر خوف سا طاری کر رہی تھی۔ زریاب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرہ کس طرف ہے جہاں بابا سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی؟ کندن نے زریاب کا ہاتھ دباتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا۔ میرے ساتھ آؤ، زریاب کہتے ہوئے ایک طرف چلنے لگی۔ 2-3 عمارتوں کے پاس سے گھوم کر وہ ایک جگہ رک گئی۔ تقریباً 20 گز دور ایک کمرے کی کھڑکی سے زرد سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ زریاب چند لمحے اس طرف دیکھتی رہی، پھر بولی،
میرا خیال ہے کہ وہ گوپانگ کا کمرہ ہے، اس طرف آؤ۔ وہ ایک اور عمارت کے اوپر سے گھوم کر دوسری طرف آ گئے اور پھر کتوں کی غرراہٹیں سن کر وہ تینوں ٹھٹک کر رک گئے۔ کتوں کی غرراہٹوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کھا رہے ہوں۔ چپڑ چپڑ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ تینوں آواز کی طرف دیکھ رہے تھے اور پھر انہیں دو کتے بھی نظر آ گئے جو اپنے سامنے پڑی ہوئی کسی چیز کو کھا رہے تھے، اور غالباً اسی لیے وہ کتے ان پر نہیں لپکے تھے، البتہ غراتے ہوئے وارننگ دے رہے تھے کہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ذریعہ نے ٹارچ چلا لی۔ روشنی کا دائرہ اس چیز پر پڑا جس پر کتے منہ مار رہے تھے۔ اس نے ٹارچ فوراً بجھا دی، لیکن ایک لمحے کی روشنی میں اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اسے دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ حرمت چودھری کی لاش تھی جسے کتے چیر پھاڑ رہے تھے۔